Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Allah संजे बाजार नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान ऐं असांजी सोच खां वधीक असां ते रहम ऐं करम कंदड़ आहे। उसी ज़ात बाबरकत से मांगते हैं, उसी ने पैदा किया है, उसी की इबादत करते हैं, उसी से तलब करते हैं और उसी से ही हमारी हर दुआ के मुस्तजाब होने की उम्मीद वाबस्ता है और उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, अकमाजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा and welcome to class number 38 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and this is the fourth day of the week since we run this class from Monday to Friday. So this is Thursday, this is Khamisa, and we are here to present this class number 38 before you on behalf of Sindhi Language Authority. This is 5:02 p.m. in Pakistan and Uzbekistan, in Tashkent and Samarkand and other cities. This is 5:32 now, 5:33 p.m. in India. This is 4:03 p.m. in the United Arab Emirates. This is 3:03 p.m. in Hijaz al-Muqaddas Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:03 p.m. in the afternoon in United Kingdom, including London and some of the parts of Europe too. This is 7:03 a.m. In the East Coast of United States of America, including the Washington, D.C. and New York. This is 9:03 p.m. in Japan, 11:03 p.m. in Australia, and 1:03 a.m. for the next day in New Zealand. So good evening to all those who are joining us from South Asia, most of the parts of Asia, from Central Asia, from MENA, from Middle East, from Far East, those who are joining us from London and other parts of United Kingdom and most of the parts of Europe. We want to greet them as good afternoon, and those who are joining us from the East Coast of the United States of America and some of the parts of Canada, including Toronto, we want to greet them as good morning, early good morning. So let's jump to our slide number 1 of this class, which is the indicator of the class number and the date and the day, etc., which shows the details of the class, which shows the details of the session, that what do we do, what are we here to do today. This is a class by Sindhi Language Authority, Hyderabad. Muqtadra Sindhi Zuban Hyderabad, Sindhi Boli Baakhtar Idara Hyderabad, and the name of the class. The title of the course is the Sindhi Language Learning Course Online, Sindhi Boli Sikhya Course Online, and this is class number what? Class number what? You tell me. Who will tell me? Who is there to volunteer him or herself to tell me? Though this is not a difficult task. Who will read this number in Sindhi? What do we call 38 in Sindhi? Who will tell me? Muhammad Imran Zakaria Saab will tell me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam Imran Saab, क्या आयो? Alhamdulillah sir, ता के आयो? मां ठीक है, alhamdulillah. तबीयत बताओ, what is this class number? 38. 38, shabash, very good. 38. This is class number 38. 38 is 38. Anybody else who can repeat this? He told me correctly, but can anybody else repeat this? As Imran Sahab told, 38. As I have already told you that this is triya. Triya means 30. And whatever the number we add into it, that will be Satriya, Chatriya, Chatriya. Muhammad Hamza Sahab will repeat it. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam Hamza Sahab, किया आयो? सर मां ठीक है सर, ता बुधायो कि हाँ ठीक है Hamza Sahab, thank दुआन साहब. जी Hamza Sahab, what is that written? सर 38. Kshatriya, shabash, very good, thank you. Kshatriya 38 is called Kshatriya in Sindhi, and just if we repeat from 31 to 39, that will be, अगर हम ये समझ लें कि Triya is 30, तो एक Triya is 31, but Triya is 32, Triya is 33, Chotriya is 34, Panjatriya is 35, Kshatriya is 36, Satatriya is it was yesterday, Satatriya, that is 37. Akshariya is 38. Unitaliya, this is a difficult one. Unitaliya is
39, and then Charlie is 40. Who will read these red words for me, which indicates the date and the day today? This is Thursday, 22nd of February, 2024. Who will tell me what is this written in Sindhi? Come on, hurry up, volunteer yourself. Otherwise, I will have to go through the list. I will have to find out. Then I will have to select any one of you, and I will have to request that kindly read it down for me, for everyone. आप बताइए ताकि हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ें और फिर आगे का काम करें, क्योंकि lot to do. Who will tell me? Mahashajat Sahib, are you volunteering yourself? You haven't volunteered, but I'm requesting you to read it down. What is written in this red? Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, Mahavish Sahib, कियां आयो? Alhamdulillah, sir. ठीक तव्हां कीअं आहियो? मां भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तव्हां इहो पढ़ंदो, कैन यू रीड दिस? क्या पढ़ सकती हैं जो रेड में लिखा हुआ है? जी सर, जरूर। जी सर, जी, खमीस। 22 फरवरी 2024 ईस्वी। ओके, रीड इट अगेन प्लीज। खमीस 22 फरवरी 2024 ईस्वी। शाबाश, थैंक यू। खमीस 22 फरवरी 2024 ईस्वी। खमीस 22 फरवरी 2024 ईस्वी। फायजा, कैन यू रिपीट दिस फॉर एवरीवन? What is written in Sindhi? The date and the day. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तव्हां कीअं आहियो? मैम ठीक है, अल्लाह शुक्र है। जी फायदा साहब, ये पढ़ी सको था मुझे लाजे को गाड़ी खमीस। बस लिखियल है। जी सर, खमीस 22 फरवरी 2024 ईस्वी। 2024 ईस्वी, शाबाश, थैंक यू। खमीस 22 फरवरी 2024 ईस्वी is written as the date and the day of today, and that indicates the day and the date on which this class number 38, class number 38 is going to take place, right? So, Bismillahirrahmanirrahim, we begin, and we always want to repeat this name. जेको सभिनी खां बाज़ारो नालो आहे अल्लाह साईं जो, उनखे जेतिरो दफ़ा बार बार असां वरजाईंदासूं त इन ॻाल्हि जी जो इत्मीनान बि ईंदो त असां जंहिं कम जो आगाज़ कयूं था उन में अल्लाह साईं बरकत विझंदो। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐं उहो साॻियो ई विर्द शाह लतीफ़ जी ज़ुबानी, in shape of the poetry of Shah Abdul Latif Bhitai. He says, Awal Allahu Alim, Ala Alam Jo Dhani. अवल अल्लाहु अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हम्द हकीम करे पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान दी. So this is the poetry of Shah Abdul Latif Bhitai, and he expresses, he disseminates, he explains, he expresses the greatness, the glory of the Almighty Allah. And the selection of words, the selection of the words he has selected for this poetry is tremendous. यानी अल्लाह तबारक तआला जे शान शान लफ्ज़न जो इंतखाब हुन कयो आहे त हू अलीम बि आहे, त आलम जो धनी बि आहे, त पंहिंजी कुदरत सी क़दीम क़दामत खां क़ाइम आहे, वाली आहे, वाहिद आहे, वहदहू आहे, राज़िक़ आहे, रब रहीम आहे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक पोइट्री पीस है, which is the very first poetry, the first poem of the first chapter of Shah Abdul Latif Bhitai's poetry collection that is called Shah Jo Risalo. तो इसी के साथ हम आगाज करते हैं, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आज जो लफ्ज और आज का लफ्ज। लेकिन उससे पहले हु इज देयर टू रिमाइंड मी व्हाट डिड वी डू इन यस्टरडेज क्लास, ताकि उनको पता चल सके जो कल की क्लास मिस कर चुके हैं, तो उनको पता चल सके कि हमने कल क्या किया था। तो उस लिहाज से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो व्हाट डिड वी डू इन यस्टरडेज क्लास? हु इज देयर टू गाइड मी कि कल की क्लास में हमने क्या किया था? रबिया साहिबा, would you please tell everyone कि what did we do in yesterday's class? Can you hear me, Rबिया साहिबा? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम तव्हां सलाम कीअं मैम। आहियो? मां ठीक आहियां, तव्हां कीअं आहियो मैम? मां बि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आहियां। माशाल्लाह। जी रबिया साहिबा,
सर कल आज जो आफ्टर डूइंग लव्स एंड जुमलों के बाद पहले ये हमने बताएं हर मेंबर पहले ये बताएं कल क्या था, कल कौन सा दिन था? कल मदर लैंग्वेज डे था, या इंटरनेशनल मदर शाबाश, लैंग्वेज डे। शाबाश। जिस तो हमने कल लव्स किया था। जुमले के बाद हमने हर मेंबर ने अपने मदर लैंग्वेज के बारे में जो जो पॉइंट्स उन्हें पता थे उन्होंने डिस्कस किए थे। राइट, तो यूं कहा जा सकता है कि कल की क्लास स्पेशल क्लास थी। यस सर, कल वेबिनार टाइप क्लास थी। ओके, तो हमारी रूटीन से हटकर कल क्लास थी, और उसमें जो है वो, डिड यू नोट डाउन द नेम्स के कल किन किन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया? मैं आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आप डिड एनीवन नोट डाउन द नेम्स कि किस किस ने इजहार किया अपने ख्यालात का? नो सर। ओके, एनीवन? थैंक यू रबिया साहबा। एनीवन कि जिसने अपनी अपने रिकॉर्ड के लिए ये नोट किया हो कि किस किस ने किस किस जुबान पर बात की? एनीवन? वैसे तो खैर स्लाइड्स में आ जाएगा, लेकिन एनीवन अगर किसी ने ये किया हो, नोट्स लिए हो, तो ही और शी कैन रेज हिज और हर हैंड। ओके, तो रबिया साहब मुझे ये बताइए कि हाँ, मैंने जहाँ पर आपकी बात काटी थी कतई कलामी के माफी के साथ, कि वहां पर आप बता रही थी समथिंग अबाउट वर्ड ऑफ द डे, तो क्या कल वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे किया था हमने? सिर्फ इतना बता दें। यस सर। ओके, तो ये कल सेगमेंट हुए थे दोनों, यस सर। और उसके बाद हमने वेबिनार किया था, राइट? यस सर। चलें जनाब, अगर हमने वर्ड ऑफ द डे किया था तो हु विल टेल मी कि वर्ड ऑफ द डे क्या था? कल हमने किस वर्ड को सीखा था, किस नए वर्ड को सीखने की कोशिश की थी? मुझे कौन बताएगा? एनीवन हु हैज नॉट पार्टिसिपेटेड येट, तो मुझे अगर आप काइंडली बताएं कि कल हमने कौन सा लफ्ज जो है वो सीखा था। आयशा खान साहब, कैन यू टेल मी, कैन यू गाइड मी, व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे यस्टरडे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, तव्हां कीअं आहियो? मां सुठी आहियां सर, तव्हां कीअं आहियो? मां बि सुठो आहियां मैम। जी मैम, कल छा पढ़ियोसीं, कहिड़ो लफ़्ज़ सिखियो हुयोसीं? ओ जागो, उजागो, जागना, रत रत what जगह करना। रत जगह करना? रत जगह करना नहीं, इन 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 फैक्ट रत जगह मतलब जब आपकी नींद पूरी ना हो तो जो लैक ऑफ नींद रह जाती है उसको आप कहते हैं, उसको तो शब बेदारी कहते हैं। जो आप डेलिबरेटली जागते हैं, यानी अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से जागते हैं। कभी कोई घर में सेलिब्रेशन होती है, कभी इबादत की रात होती है, तो उसको तो जागना मीन्स, ये जागना और सोना दो अलग अलग कैफियत है। कल मैंने बताया था दो एक्सट्रीम कैफियत है, उसके दरमियान वाली जो कैफियत है ना, आप जाग रहे हो ना सो रहे हो, उसको कहते हैं। यानी अगर कोई आपके सामने मुसलसल यैन कर रहा हो, मुसलसल जमाइयां ले रहा हो, तो आप कहेंगे यार तुम्हें रत जगह है क्या? तो क्या वो जागवा है क्या? यानी रात नहीं सोए क्या? आप पहला सवाल ये करते हैं ना, रात नहीं सो सके क्या? तो दैट कैफियत इज कॉल्ड रत जगह, राइट? जी। तो वो ना जागने वाली कैफियत होती है ना सोने वाली। शाबाश आयशा खान साहब, थैंक यू। तो आज का लफ्ज है, कल हमने रत जगह सीखा था। मैं कहने वाला था रत जगह किया था, कल रत जगह नहीं किया था, रत जगह लफ्ज सीखा था। आज हम लफ्ज सीख रहे हैं, ये मैंने इसका जिक्र तब किया था जब याहो हम सीख रहे थे, ठीक है? मेरे ख्याल में हम अलिफ व ओ की मश्क कर रहे थे, और उसमें मैंने कहा कि पॉसिबल वर्ड्स जब हम डिस्कस करते हैं ना सेकंड स्टेज पे, तो मैंने आपको बताया था कि एक लफ्ज से हो सकता है याहो, जो हमने सीखा, जो कि हेजहॉग को कहते हैं, जो कि खारपुश्त को कहते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इसके साथ डाल लगा दूं तो ये डाहो हो जाएगा। ज़हीन के लिए प्योर जो इंडिजीनियस लफ्ज इस्तेमाल होता है, दैट इज डाहो, डाहो। ये वही डा है, डाल है, जिससे डेडर शुरू होता है, जिससे मेंढक का जो वर्ड है वो शुरू होता है। डाल डेडर, अलिफ अख, हे हाथी, या क्या है, हे हाथी है ना मेरे ख्याल में जी, एंड वाढो, ठीक है? डाहो, दिस इज ज़हीन, इंटेलिजेंट। लेकिन ज़हीन अ मेल, नॉट फीमेल। आप किसी खातून को डाहो खातून नहीं कह सकते, डाहो छोकरी नहीं कह सकते। वो क्या कहेंगे वो उसके बाद में आपको बताऊंगा। डाहो इज यूज फॉर सिंगुलर मेल, याद रखिए, सिंगुलर मेल, ये इसकी शर्त है। उर्दू में ज़हीन जो है वो आप लड़के के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर लगाएंगे ज़हीन लड़का तो मीन्स लड़का, ज़हीन लड़की, ज़हीन लड़की, ज़हीन तालिब इल्म,
तो यानी ज़हीन तालिबा और प्लूरल के भी इस्तेमाल होता है, यानी ज़हीन तालिब तो भी यानी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, ज़हीन तलबा तो उसके लिए इस्तेमाल होगा, ये मल्टीपर्पज है। लेकिन इसमें सिंगुलर, प्लूरल और मेल फीमेल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए ये लफ्ज चेंज होगा। So first of all, write it down. For male singular, that will be used at da, ho. 4 हरूफ पर मुश्तमिल दाल, अलिफ, हे, वाव 4 हरूफ है, 2 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा है डा, दूसरा है हो। सीधा सीधा 2 पदों पर मुश्तमिल, 2 आवाजों पर मुश्तमिल लफ्ज है। एक आवाज है डा, दूसरी है हो। डा इज डाल, अलिफ जबर डा। हे दूसरी है हे, वाव जबर हो, डा हो, डा हो। Daho means Zahin, intelligent, smart. Daho. D-double-A-H-O या double D-double-A-H-O. Daho, right? This is for male singular. Now, if you want to use it for female, if you want to use it for feminine, मैं अगर कहूँ कि मोहम्मद इमरान ज़करिया डाहो आए, मैं अगर कहूँ मोहम्मद हमजा डाहो आए, कह सकता हूँ मोहम्मद जलील डाहो आए, नदीम डाहो आए, रिजवान खान डाहो आए, यानी मैं अगर मेल्स के लिए कहूँ वकास डाहो आए, मकसूद साहब डाहो आए, तो आसिफ इकबाल साहब डाहो आए। लेकिन अगर मैं आयशा खान के लिए कहूँगा तो डाहो आए नहीं कहूँ, तो मैं कहूँगा आयशा खान डाही आए। दिस इज फॉर सिंगुलर फेमिनाइन। रबिया साहिबा डाही आए, ठीक है। फायदा साहिबा डाही आए, माविश एजाज साहिबा डाही आए, आयशा तारिक साहिबा डाही आए, यानी दिस इज यूज्ड फॉर फेमिनाइन सिंगुलर। अफरोज साहिबा डाही आए, फजीला साहिबा डाही आए, तो दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड फॉर फेमिनाइन। और वो अल्फाज जो मायनी तो मजमूई तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लफ्ज बजाते खुद सिंगुलर है, जैसे कौम, कौम लफ्ज सिंगुलर है लेकिन यूज होता है एक बहुत बड़े मजमे के लिए, तो उसमें भी यही इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मुंजी कौम डाहिया है, मेरी कौम ज़हीन है, तो उसके लिए भी डाही ही इस्तेमाल होगा। तो दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फीमेल, सिंगुलर फेमिनाइन, डाही। वही लफ्ज है, उसका ये चेंज हो गई वाव की जगह पर। डाल अलिफ ज़बर डा, हे ये जेर ही, डा ही कैसे जे करते हैं, पहला हर्फ, दूसरा हर्फ, अगर तीसरा है तो वो, फिर उसके ऊपर जो या नीचे जो एराब होती है उसका जिक्र करते हैं। हिज्जे करने का प्रोटोकॉल यही है। डाल अलिफ ज़बर डा, हे ये जेर ही, डा ही इज यूज्ड फॉर मुअन्नस, ज़हीन मुअन्नस, इंटेलिजेंट फेमिनाइन, डाही, डाही इज मुअन्नस। अंडरस्टैंड, क्लियर? अब अगर हम मजमूई तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि बहैसियत मजमा हम जिक्र कर रहे हैं, मिनहसुल मजमा जिक्र कर रहे हैं, मिनहसुल कौम अगर जिक्र कर रहे हैं, और उसके लिए कोई लफ्ज चाहिए तो वो है डाहा। डाहा, डाल अलिफ ज़बर डा, है अलिफ ज़बर हा, डाहा इज जमा, लेकिन जमा मैस्कुलाइन, ठीक है। डाहा, डाहा इज ज़हीन जमा, इंटेलिजेंट फॉर प्लूरल, ठीक है। डाहा, डाहा इज जमा लेकिन फॉर मेल। मैं यहां पर ऐड कर लूं कि कहीं कंफ्यूजन आपके लिए रह न जाए, ये जमा है लेकिन मुजक्कर के लिए जमा है, राइट, ताकि आपके जहन में ये कंफ्यूजन ना रहे। ये मुजक्कर के लिए अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो वो जो है इस्तेमाल होगा डाहा, ठीक है। और फिर अगर आप कहेंगे कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, तो मुअन्नस के लिए यानी प्लूरल में तो वो हो जाएगा डाह्यूं, ठीक है। डाह्यूं वो हो जाएगा डाह्यूं, तो ये हो जाएगा जमा मुअन्नस। जमा अगर मुअन्नस में कहना है तो वो हो जाएगा डाह्यूं, राइट, जमा डाह्यूं। जमा यहाँ पर मैं इसकी वजाहत कर लूं, ये मुअन्नस के लिए है, ज़हीन मुअन्नस के लिए है, प्लूरल फॉर फेमिनाइन। और ये जो इससे पहले हमने सीखा, दिस इज प्लूरल फॉर मैस्कुलाइन, दिस इज जमा फॉर मुज़क्कर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो हमने 2 जमा सीखे. This is the final slide. Daha. Da alif zabr da, he alif zabr ha. Daha for plural मुजक्कर. अगर बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैस्कुलाइन अगर ज़हीन है तो हम कहेंगे डाहा. ठीक है, डाहा तपो डाहा दसो बाकी किथे आए हैं. उस्ताद बुखारी की ये सत्र है, यानी ऐ मेरे ज़हीनो मुझे बताओ कि मैं. Yes, there was an interruption. So I was telling you about Daha. Daha means if we are talking about intelligent people in plural, that is Daha. Daha is Jama Muzakkar. Zaheen Jama Muzakkar ke liye. Intelligent for plural masculine. That is Daha. Okay. And this is Dahyun. Let me correct it in this Roman. Dahyun. Right. तो ये हो जाएगा कि अगर लड़कियां हैं, अगर खवातीन हैं, बहुत सारी हैं, तालिबात हैं, बहुत सारी हैं और ज़हीन हैं, हम उनको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ही डाह्यूं शागिर्दानी आए, ही डाह्यूं छोकरियों आए, ही डाह्यूं औरतों आए, ही डाह्यूं खवातीन आए. खवातीन से इस्तेमाल नहीं होता है. ही डाह्यूं औरतों आए, ही डाह्यूं मस्तूरात आए, या ही डाह्यूं सूरमियों आए. सूरमी कहते हैं हीरोज को, फीमेल हीरोज को सूरमी कहा जाता है. जिस तरह शाबिलरी बिटाई ने भी बहुत सारी रोल मॉडल वेमेन को का जिक्र किया है. जैसे आपने सुना होगा मारुई जो कि हुब्बल वतनी की एक मिसाल है, ससुई जो कि जद्दोजहद की एक मिसाल है, इसी तरह से सोहनी जो कि सोहनी माईवाल का किस्सा आपने सुना होगा, लीला. तो दीज आर सूरमीज. तो डाह्यूं सूरमियों आए, डाह्यूं शागिर्दानियों आए, डाह्यूं न्याणियों आए, डाह्यूं धीर आए. तो डाह्यूं मीन्स ज़हीन फॉर प्लूरल फीमेल. तो हमने 4 लफ्ज सीखे. लेट मी रिवाइज दीज 4 वर्ड्स. एक ही लफ्ज की 4 फॉर्म सीखे. डाहो इज मेल सिंगुलर इंटेलिजेंट. डाहो लफ्ज की मीनिंग है इंटेलिजेंट, ज़हीन. ये आप जहन में रखें. राइट. डाहो मीन्स ज़हीन, इंटेलिजेंट. लेकिन this is used when we are using daho, that is used for singular male. ज़हीन लेकिन singular male. उसके बाद अगर मैं कहूँ डाही तो that is used for singular female. अगर मैं कहूँ डाहा that is used for singular plural male. अगर plural हो और males हो, डाहा छोकरा, डाहा शागिर्द, डाहा पुत्र, डाहा ऑफिसर, डाहा फौजी, डाहा कौम जा फर्द, डाहा क्लास जा शागिर्द, डाहा सिखंदड़, डाहा सिखारींदड़, डाहा दानिश्वर. तो if there's a number of intelligent people male, तो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे डाहा. और अगर बहुत सारी खवातीन हैं, फीमेल्स हैं, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर प्लूरल फेमिनाइन डाह्यूं. तो 3 लफ्ज हुए डाह्यूं, डाहा, डाही, डाहो. अंडरस्टैंड? कोई इसके हवाले से क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन रेज द हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. इफ नॉट देन आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, कौन मुझे गाइड करेगा? व्हाट वाज द सेंटेंस ऑफ द डे यस्टरडे? व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे एज सेंटेंस ऑफ द डे? Who is there to tell me? Faisal साहब, थोड़ी देर पहले आपने हाथ बुलंद किया था तो वहां तो खड़े हुए हो. वर्ड ऑफ द डे बताने चला. Would you be kind enough to please tell me, guide me, what was the sentence of the day yesterday? सर कल्ह को सेंटेंस ॾींहं जे हवाले सां हुयो त छा हुयो, तव्हां सभिनी खे ॿोलीअ जे आलमी ॾींहं जो मुबारक, समथिंग लाइक दैट. विसरी वियो. कल बोली जो आलमी ॾींहुं त कोन हुयो. मोहम्मद जलील साहब तव्हांखे ॿुधाईंदो. थैंक यू फाइज़ल साहब. मोहम्मद जलील साहब मादरी ॿोलीअ जो. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जो सलाम. छा हाल आहे सर? मां बिल्कुल ठीक है. तव्हांजी तबियत सेहत कीअं आहे मोहम्मद जलील साहब? सर बिल्कुल ठीक है. मैं सुठो आहे सर. मैं सुठो आहियां नहीं, मां मां सुठो मां आहे. सुठो आहियां. मां सुठो मां आहियां. मां मां सुठो मां आहियां. सुठो आहियां. आहियां आहियां मां सुठो आहियां. जी, मां सुठो आहियां जी. बिल्कुल सर. जी. सर यस्टरडे जो वो था जुमला, वो था सर मादरी ॿोलीअ जी आलमी ॾींहुं जो वधायूं.
जूं वाधायूं वाधायूं। मादरी बोली थी वाधायूं। हाँ, बादरी बोलिन जे आलमी डी है जूं वाधायूं, जे और जूं इसमें डिफरेंशिएट कीजिए। मादरी बोलिन जे आलमी डी है जूं वाधायूं। आप एक्सटेम्पोर बोलिए, एक्सटेम्पोर अच्छा बोलते हैं, कल सबसे अच्छा बोल, ऐसे तो नहीं कहूंगा सबसे, लेकिन जो हमारे बेस्ट स्पीकर्स थैंक थे, यू सर। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स। तो कल आपने मेरे थैंक बियॉन्ड यू सर। एक्सपेक्टेशंस आपने जो है वो बात की थी। तो आप एक्सटेम्पोर बोला करें। आप वैसे अगर देख के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लर्नर गाड़ी चला रहा है, या ऐसा लगता है जैसे कीचड़ से भरी हुई गली होती है, कीचड़ से भरी हुई गली हो और वहां से कोई खुशपोश शख्स अगर गुजरने की कोशिश करे ईंटों पर पांव रख के, तो कैसे गुजरेगा। तो ऐसे लगता है कि जब आप ऐसा जुमला पढ़ते हैं तो एक्सटेम्पोर पढ़ा करें। आप कहें मादरी बोलिन जे आलमी दी सर है मैं जूं वाधायूं। अभी सर जी, बिल्कुल सर, मादरी बोली जी आलमी डीह जो वधायूं। जूं वाधायूं, जूं मादरी वाधायूं, बोली जी आलमी डीह जूं वाधायूं। वधायूं। हाँ, अच्छा, जी को जे कहें। मादरी बोलिन जे आलमी दी है जूं वाधायूं। मादरी बोले जे आलमी डीह जूं वधायूं। गुड, शाबाश, थैंक यू सर। मादरी बोलेंगे आलमी थैंक दी यू जो सर। वादायूं, और उनको मुबारकबाद जिन्होंने कल हमें ज्वाइन नहीं किया था, तो उनको हम आलमी यौम मादरी जुबान की आज मुबारकबाद देते हैं। वो बासी नहीं होती, वो हमेशा ताज़ा रहती है, क्योंकि माँ से मोहब्बत जिस तरह ताज़ा रहती है, माँ की बोली से, मादरी जुबान से मोहब्बत भी ताज़ा रहती है। तो कल हमने जुमला यही किया था कि ग्रीट अगर हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, राइट। हमने उससे पहले वाले दिन एक जुमला सीखा था कि अगर आप सब्जी लेने या फल लेने जाते हैं तो आप कहते हैं सेब कितने के हैं, या करेले कितने के हैं, या आलू कितने के, या टिंडे कितने के, या पटाटा कहने जाए, या वांगण कितने जाए। अब उसी आम कॉन्वर्सेशन में, यानी क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड कॉन्वर्सेशन में, आप ये भी पूछते हैं कि फला चीज या फला शहर या फला इलाका या फला बिल्डिंग या फला इमारत यहाँ से कितनी दूर है। केड़ी वथ, केड़ो इलाइको, केड़ो पाड़ो, केड़ी कॉलोनी, केड़ी सोसाइटी, केड़ो शहर, केड़ो सूबो, केड़ो मुल्क हितां खां केतिरो परे आहे। तव्हां इहो आम कॉन्वर्सेशन में पुछंदा आहियो। Yani if you're traveling in Hyderabad and you are driving, you can stop your car somewhere and you can ask someone that ठंडी सड़क हितां केतिरो परे आहे, ऑटोबान हितां केतिरो परे आहे, right? You can ask someone सदर हितां केतिरो परे आहे, लतीफाबाद 2.5 नंबर हितां केतिरो परे आहे, वाधोवा हितां केतिरो परे आहे। If you're traveling in Karachi, you can ask someone, and you will be asking. This is a common, routine of everyone. Okay, किसी चीज का अगर पता ना हो आपको, तो आप कहेंगे कि यहाँ से नर्सरी यहाँ से कितना दूर है, या बताएंगे हसन स्क्वायर यहाँ से कितना दूर, नीपा यहाँ से कितना दूर है, कोरंगी यहाँ से कितना दूर है। मुझे पता है कि जो कराची से बाहर के लोग हैं उनको ये तमाम नाम जो है अजीब लगते होंगे, लेकिन एनीवेज दिस इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। सो वो फासला किस तरह से पूछा जाता है, और उसमें जो जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अगर मेल है तो किस तरह से पूछेंगे, फीमेल है तो किस तरह पूछेंगे। जुमला है, यहां से हैदराबाद कितनी दूर है। हर शहर जो होता है वो अपने जौहर में या मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है, ठीक है। सखर बड़ा है, ठीक है, सिंधी में मैं कह रहा हूँ, सिंधी में तो हैदराबाद भी बड़ा है और कराची भी बड़ा है। कराची को कहते हैं पूरा कराची, लेकिन सिंधी में कहेंगे समूरी कराची। सिंधी में कराची को हम प्रोनाउंस करते हैं एज फीमेल। हैदराबाद को उर्दू में एज मेल प्रोनाउंस किया जाता है, सिंधी में सजी हैदराबाद हम कहेंगे। आप कहेंगे पूरा हैदराबाद शान मारा उर्दू में, सिंधी में कहते हैं सजी हैदराबाद। इवन सिंध को आप कहेंगे पूरा सिंध, सिंधी में कहेंगे पूरी सिंध। सिंध जो है वो अपने जौहर में फीमेल है। अजनास सिर्फ जानदार चीजों की नहीं होती, हम चीजों को भी, जैसे मैंने आप बताया, अच्छी टेबल, अच्छी कुर्सी, लेकिन अच्छा सोफा। अब ये जिन्स का तायन किसने किया? गुफ्तगू ने, कि हम गुफ्तगू में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छी मेज, अच्छा कप, अच्छा ग्लास, अच्छा चम्मच, लेकिन अच्छी केतली। अब केतली को फीमेल किसने कर दिया? हमारी गुफ्तगू ने। हम अपनी गुफ्तगू में मिजाजन उसके जौहर को तय करते हैं। तो ये बात याद रहे कि आप हैदराबाद को या कराची को उर्दू में एज मैस्कुलाइन प्रोनाउंस करते हो, लेकिन सिंधी में उसका जौहर फीमेल है। सजी हैदराबाद, और इसी तरह से सजी कराची, इसी तरह से सजी सिंध, आप कहेंगे पूरा सिंध। और ये ठीक है, हर जुबान का मिजाज अपना होता है। तो उर्दू में अगर आप पूछेंगे हाउ फार इज हैदराबाद फ्रॉम हेयर, यहाँ से हैदराबाद कितनी दूर है, यहाँ से
हैदराबाद कितनी दूर है, तो आप सिंधी में कहेंगे हितां हैदराबाद केतिरी परे आहे। आई हैव हाईलाइटेड द सिटी एंड उसके साथ ये जो रिलेटेड वर्ड है उसको हाईलाइट किया है ताकि जब वो फर्क हो, जब मैं यहाँ पर मेल सिटी लिखूं, यानी सिटी तो सिटी है लेकिन अपने जौहर में जिसको एज अ मेल इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर केतरी जो है वो उसको कौन सा लफ्ज रिप्लेस करेगा। हिता मीन्स यहाँ से, हैदराबाद मीन्स हैदराबाद, प्रॉपर नाउन की तो मीनिंग वही होती है। केतरी मीन्स कितनी, केतरो मीन्स कितना, परे मीन्स परे, दूर, आहे मीन्स है। कितना सिंपल है। उर्दू बोलने वालों का एडवांटेज यह है कि उर्दू ने सिंधी के वतन से जन्म लिया है, तो उसकी जो शेपिंग है वो बराबर है। इंग्लिश की तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें ये जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ये दरमियान में आता है, ये बड़ी मुश्किल करता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और आहे है, वो एंड में आता है। उर्दू में भी एंड में आता है, सिंधी में भी एंड में आता है। सिंधी में सिर्फ आप रिप्लेस करेंगे अल्फाज को तो आपका तर्जुमा बन जाएगा। इंग्लिश में तो आपको पूरी फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है जुमले की, कि पहले वो जो सवालिया लफ्ज है वो आता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद प्रॉपर नाउन आता है, और फिर कहाँ से का पूछ रहे हैं वो एंड में आ रहा है। तो हिता हैदराबाद कितनी परे आए, हे हिता, हे जेरे हे, ते अलिफ नून गुन्ना जबर ता, हिता हैदराबाद, हे ये जबर हे ये जबर है, जो अभी हम करेंगे चार्ट करेंगे। हे ये जबर है, दाल रे जबर दर, दाल ये जबर दर, अलिफ मद आ, बे अलिफ जबर बा, दाल जेरिद, हैदराबाद केतरी, केतरी, के पहली आवाज, त आधी आवाज, री पूरी आवाज, 1 प्लस हाफ प्लस 1 के अरेंजमेंट से ये 2.5 पदों पर मुश्तमिल लफ्ज है, 5 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज है। के ये जबर के ये के, ते जेर ते, रे ये जेर री, के तेरी परे, पे जबर प आधे पद से शुरू हो रहा है, प आधा पद है, रे पूरा पद है। 3 हरूफ पर मुश्तमिल 1.5 पदों पर मुश्तमिल लफ्ज है। पे जबर प, रे ये जबर रे, परे, आहे। So I was telling you about the Hyderabad Ketri Pare Ahe, and I was on the last word, Ahe, Alif Mad A, he, ye, he, Ahe. हिता हैदराबाद कितनी परे आए, यहां से हैदराबाद कितनी दूर है या कितना दूर है। हिता हैदराबाद कितनी परे आहे। अब इसमें तमाम वो लफ्ज आ सकते हैं कि जो फीमेल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मेल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। लाड़काणू इज अ मेल, ठट्टो इज अ मेल, दादू इज अ मेल, मोरो इज मेल, ठीक है, लाहौर इज मेल, इस्लामाबाद इज फीमेल। हिता इस्लामाबाद कितनी परे आहे, यानी हैदराबाद को रिप्लेस कर दिया आपने। हिता फैसलाबाद कितनी परे आहे, राइट। तो वो तमाम, हिता साहिवाल कितनी परे आहे, लेकिन मुल्तान इज अ मेल, ठीक है। तो वो शहर या वो इलाके जो फीमेल्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कराची में हिता सदर केतरी परे आहे, सदर कराची में भी है, हैदराबाद में भी है। ये इलाका, वैसे सदर कहा जाता है सीने को या दिल को, ठीक है। जो भी शहर का मरकजी इलाका होता है, खासतौर पर कारोबारी हिसाब से, उसको सदर कहा जाता है। सदर का इलाका उसको कहा जाता है, क्योंकि सदर जो है वो अरबी का लफ्ज है। तो सदर हर शहर में वैसे होना चाहिए, उसका इलाका जो मरकजी इलाका है उसको सदर कहा जाता है। तो सदर का इलाका हर शहर में होना चाहिए। अगर मार्क नहीं किया हुआ तो जाहिर है कि हर शहर का कोई ना कोई मरकजी इलाका तो होता होगा, तो उसको सदर कहा जा सकता है। तो इतना सदर केतरी परे आहे, लेकिन मलीर इज मेल, इतना मलीर केतरो परे आहे। इतना गुलशन केतरी परे आहे, गुलशन इकबाल को और फ़ियाम में गुलशन कहा जाता है। इसी तरह से गुलशान जौहर इज अ मेल। तो अपने जौहर में शहर या इलाके भी मेल या फीमेल होते हैं। तो हैदराबाद केतरी परे आहे इज द सेंटेंस ऑफ द डे। उसका फॉर्मेशन नंबर 1, अगर मेल लफ्ज है, जैसे कि मैंने कहा कि गुलशान जौहर या सखर या मोरो या लाड़कानो या ठट्टो, तो हम कैसे कहेंगे, हिता सखर केतरो परे आए। मिसाल के तौर पर सखर की मिसाल हम देते हैं, तो सखर केतरो परे आए, यानी चेंज क्या हुआ, जो हाईलाइटेड वर्ड है जो मैंने पहले भी मार्क किया, यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड हैदराबाद और केतरी, यहाँ पर सखर मेल आ गया तो ये बन जाएगा केतरो। यहाँ से सखर कितना दूर है, हाउ फार इज सखर फ्रॉम हेयर। हिता वही जो होगा सखर, सखर सीन जबर स, खेर जबर ख, खे जबर ख, रे पे शुरू, सखर केतरो, के ये जबर के,
तेरे तेरे वारो के तेरो पर्याय इतना सखर के तरफ पर्याय यहां से सखर कितना दूर है हाउ फॉर इज सखर फ्रॉम हियर राइट अंडरस्टैंड कोई इसमें सवाल हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन आज का जुमला था हिता हैदराबाद के त्रिपर्याय यहाँ से हैदराबाद कितना दूर है या आप उर्दू में कितनी दूर है कह सकते हैं या कितना दूर है कह सकते हैं आप उसको जैसे भी इस्तेमाल करते हैं सिंधी में उसको कहा जाएगा हिता हैदराबाद के त्रिपर्याय जामशोरो इज अ मेल तो हिता जामशोरो केतिरो पर्याय हिता सखर केतिरो पर्याय हिता मोरो केतिरो पर्याय इफ इट्स मैस्कुलाइन हिता मोरो केतिरो पर्याय हिता लाड़काणो केतिरो पर्याय हिता ठट्टो केतिरो पर्याय बदीन इज अ फीमेल तो वो इसमें आएगा हिता बदीन केतरी पर्याय हिता मिठी केतरी पर्याय अगर इस्लाम कोट तो फिर वो मेल बन जाएगा हिता इस्लाम कोट केतिरो पर्याय हिता नंगर पार कर केतिरो पर्याय केतिरो और केतरी विल डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द इलाका जहां पर हम जा रहे हैं द जेंडर ऑफ द डेस्टिनेशन और उसी लिहाज से इसको इस्तेमाल करेंगे एनी क्वेश्चंस सो वी आर टॉकिंग अबाउट मदर लैंग्वेज वेबिनार्स कोर्स हमने कहा था कि आपकी जो स्पीच में स्कोरिंग होगी राइट so what do you expect for as far as this course are concerned who were not there yesterday can you raise your hands please I'm not going to ask anyone the reason but who was not there can you raise your hands so that I may see that who were not there yesterday okay सर करीम बख्श जी करीम साहब कल तव्हां हुयो त सही पर तव्हां वरी उनखे पोइ बाद में कनेक्ट न थी हा सघे वरी पोइ साईं कमु थी वियो पोइ डिस्कनेक्ट थी वियो साईं ओके ठीक है स्पीच में अॼु मोकिली आहे उसमें रिटर्न में साईं मोकिली हुई हाँ और रिटर्न में जिस जगह तव्हां चेक करे मोकिली तो पर तव्हां स्कोरिंग में न अची सघंदव यकीन न अची सघंदव स्कोरिंग में न इसको मसलो कोन्हे साईं पर अफ़सोस थी वियो मां मसलो पाण आहे अची कोन सघियसि मसलो आहे मसलो उनखे न, बढ़ाई न मक़सदु उनखे तव्हां टेक इट सीरियस मां हिनखे नथो चवां पियो त मुक़ाबले लाइ पर हा। इहे इन सां जेतिरो तव्हां हुनखे क्लास वर्क खे सीरियस वठंदो त ओतिरो वधीक तव्हांजो हा इंट्रस्ट हुन न में डेवलप थींदो ज़रूरी कमु थी पियो इन करे मूंखे पाण मूं स्पीच लिखी हुई सुठी ऐं हिन खां बि सुठी लिखी हुई पर हाणे पहुची कोन सघियसि ओके अफ़सोस आहे मूंखे कोई पंहिंजो मसलो कोन्हे कोई मसलो कोन कोन्हे करे सघियसि थैंक यू वेरी मच वॾी महिरबानी तव्हांजी जी anyone else who was not there I'm not going to ask the reason and don't please don't mark the reason just raise your hands ताकि मैं देख सकूं कि आज कौन कौन ऐसे दोस्त हैं कि जो कल मौजूद नहीं थे ओके राइट कल जो दोस्त शामिल थे हमारे जो जेंटल वेमेन एंड जेंटल मैन शरीक थे उनके नाम तो पता चल जाएंगे आपको थोड़ी देर में लेकिन इट वाज an extremely productive discussion and I loved especially to learn about your mother languages सबने बहुत अच्छा बोला और मैंने कहा कि कल के वेबिनार की सबसे अच्छी बात ये थी कि कुछ ऐसे लोगों ने बोला जो शायद जिन्होंने शायद किसी पब्लिक फोरम पर पहली मर्तबा बोला होगा तो दैट इज द सक्सेस कि अगर हमने इस हेजिटेशन को तोड़ने में कोई किरदार अदा किया तो दैट इज द ग्रेट थिंग ठीक है इस कोर्स तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते रहेंगे डोंट सी दिस कोर्स लेकिन आपकी तरफ से अपनी देखें टॉपिक ऐसा था कि उस पर आपको किसी हवाले की जरूरत नहीं है मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं अपनी अम्मी के बारे में बात करूं तो मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि मेरी अम्मी कौन है मुझसे ज्यादा उनको कौन जानता होगा तो मेरी अम्मी की जो जुबान है मेरी वालदा की जो जुबान है आपकी वालदा की जो जुबान है अगर मैं कहूँ कि वो क्या है तो उसके बारे में ठीक है बहुत अच्छी बात है आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए लेकिन अगर जो वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान नहीं भी करते सिर्फ अपनी उनसियत का इजहार करते उसके साथ दैट वाज आल्सो ऑडिबल हम उसको भी सुनते और उस मोहब्बत के इजहार को हम चाहते कि जो है वो सब तक पहुंचाएं तो आई अप्रिशिएट एवरीवन कल जिसने पार्टिसिपेट किया उसने अपने दिल से भी बात की जाहिर है मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फ्रेंच पर बात करें मुँह ताकि कौन चो स्पेनिश ते ॻाल्हायो तव्हां जर्मन ते ॻाल्हायो तव्हां कन्नड़ ते ॻाल्हायो तव्हां बल्ती ते ॻाल्हायो तव्हां शीना ते ॻाल्हायो सभी ॿोलियूं ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि बट आई इनवाइटेड यू टू टॉक अबाउट योर ओन मदर टंग तो आपकी मदर टंग के बारे में जब आपने एक्सप्रेस किया तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली एंड आई मीन इट कि कल बहुत सारी नई बातें भी मुझे कुछ लैंग्वेजेस के हवाले से मालूम हुई तो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो इसको भरपूर बनाने के लिए आई हैव आस्क्ड माय टीम
कि उनमें से कुछ कुछ लाइनों के हर किसी के चंद चंद जुमले जो है वो मुझे निकाल के एक रिपोर्ट बना दें, ताकि वो मैं अपने रिकॉर्ड पे रखूं और आपके साथ भी वो शेयर कर सकूं। सबने बहुत अच्छा बोला, लेकिन पॉइंट वाइज जो है, एक तो जिसने पॉइंट्स लिखकर एक्सटेम्पोर बोला, और इसमें स्कोरिंग से ये मत समझिएगा कि वो मैंने कम अच्छा बोला और उसने ज्यादा अच्छा बोला। मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देता हूँ आपकी पार्टिसिपेशन को। और मुझे इस बात की खुशी है, जैसे मैंने बताया, कि 2 से 3 ऐसे हमारे दोस्त थे कि जिनका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला वो सराखों पर, और बहुत अच्छा लगा। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट 2 स्पीचेस थी, यानी कंटेंट वाइज भी, डिलीवरी वाइज भी। कंटेंट का मतलब यह है कि उसमें जो पॉइंट्स, थोड़े वक्त में ज्यादा पॉइंट्स बयान करने वाली जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पीचेस थी, उनका जिक्र, वैसे तो खैर मैं स्कोर कार्ड जब खोलूंगा तो वो सबसे सामने आ जाएंगी, लेकिन अगर वो 2 हमारे ख्वातीन हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। मोहम्मद जलील साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और आयशा खान साहिबा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, इफ यू आर ऑनलाइन विद अस। यस सर। जी आयशा खान साहब, मोहम्मद Yes, जलील जी, मोहम्मद जलील साहब, एक्सीलेंट। आप दोनों के अपनी लैंग्वेज के बारे में जो पॉइंट्स थे, नंबर 1 ये कि यू बोथ स्पोक इन योर मदर लैंग्वेजेस, आपने अपनी मदर लैंग्वेजेस में बात की, उसके बारे में बात की, और जो छोटे वक्त में जितना आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, मतलब हालांकि मैंने कल बाउंड नहीं किया था, 1-2 बार मैंने मार्क किया, लेकिन 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जिसने बात की, मैंने कहा यू आर टॉकिंग आउट ऑफ योर हार्ट, सो लेट देम स्पीक। अगर ज्यादा लोग होते, 20 से ज्यादा होते, जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की, अगर वो होती तो मैं शायद रिस्ट्रिक्ट करता, लेकिन मैंने कहा कि हर किसी को बोलने दें। तो आयशा साहब आप भी, और जलील साहब आपने भी ट्रिमेंडस एक्सीलेंट, thank you. और Thank you so much, sir. पब्लिक फोरम पर बात करना, और ये मालूम होना कि ये चीज यूट्यूब पर जाएगी और सब लोग सुनेंगे, और कभी भी कोई भी इसको सुन सकता है, टॉकिंग अबाउट योर मदर टंग, यानी उसमें आपकी रिसर्च भी शामिल थी, और यू आर टॉकिंग अबाउट, जाहिर है कि जब आप अपनी मदर टंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दिल से बात कर रहे होते हैं, तो वो उसमें मुझे कहीं ये मौका नहीं मिला कि मैं आधा नंबर उस पर काट सकूं, कहीं पर ये कोई कमी रह गई तो उसका आधा नंबर कट जाए, तो आपने मुझे ये गुंजाइश नहीं दी। और खासतौर पर जलील साहब, आपके हवाले से जिस तरह से आप सिंधी को बड़ा हिचकिचा के बोलते हैं, हेजिटेशन के साथ बोलते हैं, मैं समझ रहा था कि आप इतना अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन you spoke beyond my expectations, and आयशा खान जबरदस्त, ट्रिमेंडस, और 2-4 पॉइंट्स आपने वाकई ऐसे बयान किए, ओवरऑल मदर टंग के हवाले से और कुछ उर्दू के हवाले से, खासतौर पर रिसर्चेस के हवाले से जो बात की, दैट इज अप्रिशिएबल, एक्सीलेंट, एंड कीप इट अप। अगर ऐसा मौका दोबारा हमारे इस कोर्स के दौरान आता है तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों की और सबकी, आपको देखते हुए सबकी स्पीचेस भरपूर तरीके से आए, और आप उस मौजू पर जो भी 3 मिनट या 5 मिनट मिलते हैं ऐसी बात करें कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, मुख्तसर हो और जामे हो। सो यू बोथ आर टेकिंग 5 आउट ऑफ 5, एक्सीलेंट, शाबाश, जबरदस्त, एंड कीप इट अप। सर थैंक यू वेरी मच सर। आई विश कि मैं इसी तरह सिंधी में भी बोल पाऊँ। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद से अभी 1.5 साल पहले कराची शिफ्ट हुआ हूँ, और मेरा सिंधी से कोई लिंक ना बिल्कुल वो नहीं था, तो अभी आई एम इन लर्निंग फेज, और इंशाल्लाह आपकी जो रहनुमाई है और आप जिस तरह इम्पोर्टेंस हमें बता रहे हैं लैंग्वेजेस की, स्पेशली सिंधी की, तो इंशाल्लाह ताला इसी एक्सटेम्पोर के साथ सर सिंधी में भी आपको ये मुझसे फीडबैक मिलेगा इंशाल्लाह इसी तरह। इंशाल्लाह। आयशा खान, थैंक यू सो मच सर। आप भी ऐसा इरादा रखती हैं सिंधी में इस तरह से बोलने का, या सिर्फ ये जलील जी साहब का जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह, और इससे बेहतर मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगी, और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो ये स्कोर्स, अब स्कोर कार्ड आपके सामने रखते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आपके सामने हैं, मोहम्मद जलील साहब के और आयशा खान के, लेकिन नेवरदलेस मैंने कहा कि पहले तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप सब इतना अच्छा बोलेंगे, कुछ लोगों की तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनकी पार्टिसिपेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल अगर आप देखें इस पूरे उसको, वकास अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, 2.5 मार्क्स आपने लिए हैं। आसिफ इकबाल साहब ने बहुत अच्छा बोला, 4 नंबर उन्होंने लिए हैं। माविश एजाज साहबा ने बहुत अच्छा बोला, 3.5 स्कोर्स आपने लिए। माविश एजाज साहबा का कॉन्फिडेंस से बोलना
और डिलीवर करना पहली मर्तबा पब्लिकली सबके सामने, तो ये जो है वो बहुत अच्छी बात है और बहुत हमारे लिए वो इनकरेजमेंट की बात है। मकसूद अली साहब ने 2 नंबर्स लिए हैं, रबिया साहबा ने 3 नंबर्स लिए हैं, आयशा तारिक साहबा ने 4 नंबर्स लिए हैं, रिजवान खान साहब ने 2.5 नंबर्स लिए हैं, शादी असराज साहबा ने 3 नंबर्स लिए हैं, अफरोज साहबा ने 2.5 नंबर्स लिए हैं। अफरोज साहबा का भी आना, शामिल होना, पार्टिसिपेट करना, दैट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और उनका भी और रिजवान खान साहब का भी मैं समझा कि शायद ये स्किप कर जाएंगे। फायजा मुस्तफ़ा साहिबा, आपकी भी बहुत अच्छी स्पीच थी, 3 नंबर्स आपने लिए। नदीम सोह साहब, आपने भी 4 नंबर्स लिए, आपने भी अच्छा बोला। अच्छा, जिनके कम स्कोर्स हैं उसमें कहीं आपकी स्पीच की लेंथ की प्रॉब्लम है, कहीं डिसोरिएंटेशन या फिर चीज़ों में बातों में रब्त ना होने का मसला है, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए। आप ये देखिए कि आपकी पार्टिसिपेशन पर आपको 100 आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स मिलते हैं। मुझे रात को ये ख्याल आया कि आपने इतना अच्छा बोला है, सबने इतना अच्छा बोला है कि मेरा दिल ये चाहता है कि आप में से हर किसी की स्पीच को अगर अलग से हम कार्व करके और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें। इफ़ यू कंसेंट अस, हम आपसे पूछेंगे, इफ़ यू कंसेंट यू कैन रेज योर हैंड्स, कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आपकी जो स्पीच है 4-5 मिनट की, अगर हम उसको अलग से करके और हम यूट्यूब पर शेयर करें तो अगर किसी को एतराज़ नहीं है। माविश साहब, थैंक यू, आपका कंसेंट रिसीव्ड। ओके, आयशा खान साहिबा and rest of the participants, Jalil Sahab and others, we will again ask, my team will again ask on as a poll in the group, तो फिर उसमें से क्योंकि हर चीज़ के लिए कंसेंट ज़रूरी होता है, तो आप में से जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम उसको अलग से एक्सक्लूसिवली जो है शेयर करेंगे, ताकि आप अपने जानने वालों के साथ शेयर करें कि हमने एक इंटरनेशनल फोरम पर एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इदारे की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट क्लास के दौरान अपनी माँ बोली के हवाले से ऐसे एक्सप्रेस किया है, जिसको आप पूरी जिंदगी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी यादगार है, आपके लिए भी एक सोवीनियर है। तो आई आस्क माय टीम टू टेक ट्रबल टू कार्व दैट पीस एंड टू अपलोड इट एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब, ताकि आपके लिए भी ये मैटर ऑफ इंकरेजमेंट हो, ये भी एक प्राइज है आपके लिए, और साथ साथ ये है कि आप अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर कर सकें। तो जनाब, बैक टू आवर रेगुलर वर्क एंड दैट इज सिंधी आयोटाजी पट्टी यानी कक। तो हम कुछ याद है कि इस सफ़र में कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे का सफ़र क्या होगा? कोई ऐसा मेरा इस काफिले का हम सफ़र के जो बता सके कि हम कितने पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं इसके, और अब कहाँ पहुँचेंगे, अब अगली मंजिल कहाँ है, किस मंजिल को जाना है? कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट इज नदीम साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साईं, कहिड़ो हाल आहे? शायद तो सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ठीकु आहियो? जी सर, असीं खैर सां 9 पड़ाव पूरा करे विया आहियूं ऐं 10 में पहुता आहियूं ऐं 10हों पड़ाव जेको आहे इहो अल्फिया ए जो चार्ट आहे। अच्छा, पड़ाव खे सिंधीअ में छा चइबो आहे? जी पड़ाव खे सिंधीअ में छा चइबो आहे? तक थक तक 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 नंबर 144 लाड़काणो 2 हुनजो नतीजो आयो आहे इहो हाँ इहो तक इहो तक माना जेकॾहिं फर्ज करें कि मैं वर्ड ऑफ द डे का टेस्ट अगर अभी लूं तो आपके कितने नंबर आएंगे? मतलब जितने वर्ड्स ऑफ द डे किए हैं, अगर अभी उसकी डिक्टेशन करवाऊं तो कितने नंबर्स आपके आएंगे? डिक्टेशन नहीं, आपसे पूछूं कि किस लफ्ज को क्या कहा जाता है, तो कितने नंबर्स आएंगे, अंदाजा कीजिए। 10% तक आ जाएंगे। 10% तक आएंगे। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच। विल टेल मी व्हाट इज पड़ाव इन सिंधी? रखेंगे टेस्ट वर्ड ऑफ द डे का मोहम्मद हमजा साहब? सर थाक। थाक, थाक, नीदर थक नॉर तक, दैट इज थाक। ठीक है, तो थाक, थाक इज पड़ाव, राइट? क्या ख्याल है, आइडिया? मतलब अगर हम सिर्फ वर्ड ऑफ द डे का टेस्ट लें कि किस लफ्ज को क्या कहा जाता है, तो हाउ विल बी इट? बताइए, अपना हैंड रेस कीजिए कि कितने लोग इस पर एग्री करते हैं कि वर्ड ऑफ द डे का टेस्ट लिया जाए। लोग कहेंगे ये फिर एक और आदाब आ गया हम पर। अच्छा जी, फायदा एग्री कर रही हैं, माविश साहब एग्री कर रही हैं, नदीम साहब एग्री कर रहे हैं, बस 3 लोग एग्री कर रहे हैं। नहीं, काफी सारे, ऐसा नहीं है। अच्छा जी,
चले जना, वर्ड ऑफ द डे का टेस्ट भी हो सकता है, देखते हैं इसको। दिस इज अ रॉ आइडिया। तो दिस इज सिंधी आर्टाजी पट्टी का। थैंक यू वेरी मच हु आर गिविंग देयर कंसेंट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो हम इससे पहले 9 पड़ाव कर चुके हैं। अब है हमारी पहली टेबल के, देखें 20 टेबल्स हैं, इसकी पहली जो टेबल है, पहली जो स्लाइड है उसका आखिरी जो जदवल है वो है आय की जदवल। मैंने पहले ही आपको बताया था, इससे पहले हमने पढ़ी अलिफ ए की। अब उस पर जबर जब आ जाएगी तो ये बन जाएगा आय। ठीक है, आय आय। जब ऐसे अल्फाज आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ए और आय में फर्क क्या होता है। जब हम इसकी मशक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए और आय में फर्क क्या होता है। आपको आवाज में ही फर्क महसूस हो रहा है कि तो ये आय किस तरह से, जब आय की पट्टी होगी तो जाहिर के 52 हरूफ पर वही जो एराब है वो अप्लाई होगा। अलिफ ये जबर आय, बे ये जबर बाय, बे ये जबर बाय, भे ये जबर भाई, तय ये जबर तय। तो ये होगा आय बाय, आय बाय भाई तय सय। इस तरह से लय नय नय वय हमजो है आय और ये। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो इन हरूफ से इस हरकत में वजूद में आते हैं, और ऐसे अल्फाज की हम मश्क भी करेंगे। राइट, उसके बाद कौन कौन सी पट्टियां रहती हैं, कौन कौन से चार्ट्स रहते हैं? 20 में से 10 जब हो जाएंगे तो बाकी 10 बचेंगे। ई जो चार्ट, अलिफ जेरी ई जो चार्ट, फिर अन जो चार्ट, इन जो चार्ट, उन जो चार्ट, आ जो चार्ट, ऊं जो चार्ट, ऊं जो चार्ट, ए जो चार्ट, ऐ जो चार्ट, ए जो चार्ट, ऐ जो चार्ट। बिल्कुल इसी तरह जैसे ए जो चार्ट, ऐ जो चार्ट। इसी तरह से ई जी जदवल, दिस विल बी लास्ट वन। इस तरह से आवाजों की 50 पट्टियां बन सकती हैं, लेकिन हम बेसिकली जब हम सिखाते हैं तो 25 या 30 सिखाते हैं। लेकिन चूंकि 3 महीने का कोर्स है उसमें बुनियादी हम आपको मालूमात दे रहे हैं, तो कोशिश होगी कि 20 पट्टियां कम से कम मुकम्मल हों, ताकि इन 20 पट्टियों में आपकी हरूफ से शनासाई भी हो जाए, उनकी अशकाल से भी, और उनकी आवाज़ों से भी शनासाई हो जाए। ये बेसिक पर्पस है जिसको मीट करना है, जिसको सर्व करना है। तो अब अगर इस पट्टी का हम सरसरी जायजा लें तो I think you are ready to help me that how will we pronounce this AIJO chart. So who is going to volunteer him or herself as the first candidate to read a few letters, initial letters of this patti as I, by, bhai, tai, thai. Aisha Tariq Sahaba. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Assalamu ma'am, how are you? नहीं, सिंधी में बोले, सिंधी में पूछे। तव्हां कहीं आयो? तव्हां कहीं आयो? मां कहीं आया, तव्हां कहीं आयो? कीअं आयो? कीअं? तव्हां कीअं आयो? तव्हां कीअं आयो आयशा साहिबा? अव्हां ठीक आहे? ना, आप कहेंगे मां ठीक आया, मां ठीक आया, मां 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 ठीक ठीक आया। आहियां। जी, मां ठीक आया। Can you read a few letters for me for this jadwal? अलिफ ये जबर आई, बा ये बे ये जबर बई, बई नहीं, बाय। पे ये बाय, पे जबर पै, ते पे ये नहीं है, जबर पे नहीं है तै, मैम, ये पे नहीं है। बे ये जबर बई, बे ये जबर बे ये जबर बे, बे ये जबर बई, ते ये जबर पै। मैम ये पे नहीं है इसको। कैन यू सी माय स्लाइड? दिस इज नॉट पे, दिस इज नॉट पे। Yes ma'am, can you try it? भे भे ये जबर भई, ते ये जबर ते। प्रोनाउंस ठीक से करें, प्रोनाउंस ठीक से करें, फिर आगे बढ़े। भे ये जबर भाई, भे ये जबर भई, भाई नहीं कहे ना, जेर थोड़ी है उसमें, ये भाई जबर है, जबर का प्रोनाउंसिएशन क्लियर सुनाई दे। आए बाई बाई भाई, इस तरह से आना चाहिए मैम। भे ये जबर भाई, शाबाश।
ते ये जबर तय, Good. थे ये जबर थे, Good. टे ये जबर टे, Tie. Tie. टय, Good. टय ये जबर And what is थे, this? थे ये जबर Say it again. Say it again. थे, Thay is our Thay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, who is going to repeat this line again? Thank you, Aisha Sarva. Who is there to repeat this line again? आए बाए बाए भाई ताए थाए टाए ठाए. ठीक है, वो चार जो ई निकरन दो. नदीम साहब थोड़ा थोड़ा दरसो ताकि मैं यूटिलाइज करूं थोड़ी देर खां पो. And let me see who else can volunteer him or herself for reading this first line. Fazila Sahaba. यस सर. जी क्या आयो? सर अल्हम्दुलिल्लाह. जी फज़ीला साहब तव्हां हेल्प कंदव मुंहिंजी पहिरीं लाइन पढ़ण में? जी सर. जी प्लीज. अलिफ ये जबर आए, बे ये जबर बे, शाबाश. बे ये जबर बे, सही. भे ये जबर भय, गुड. ते ये जबर तय, सही. ये ये जबर थय, सही. ते ये जबर तय, सही. ठे ये जबर ठय. Thank you. Who else will read this forward? मैं इसको रिपीट करता चलूँ. अलिफ ये ज़बर आए, बे ये ज़बर बे, बे ये ज़बर बे, भे ये ज़बर भय, ते ये ज़बर तय, थे ये ज़बर थय, टे ये ज़बर टय, ठे ये ज़बर ठय. Karim Saab, would you please be kind enough to read it for a few letters forward? सर करीम बख्श. जी करीम साहब. थे ये जबर थे, पे ये ज़बर सय, पे ये जबर पाए, पे ये ज़बर पाए, जीम ये जबर जय, जी में ज़बर जय, जे ये जबर जय, ये ज़बर जय, जे ये जबर जय, झे ये जबर झय, झे ज़बर झय, ये जबर ये जबर ये ज़बर न्याय. ये जबर ये. Thank you, Karim Saab. Thank you. And who will read it forward? Let me repeat it for you, for everyone. Say ye zabar say, pe ye zabar paye, ji me zabar jay, ye ye zabar jay, jhe ye zabar jhay, nye ye zabar nyay, nye ye zabar nyay. Who will read from Che onwards? Who will help me reading this from Che onwards? Rizwan Khan, Shabas. रिजवान खान साहब. जी सर. जी बेटा पढ़ो. जिम ये चाहिए जबर चे, चाहिए जबर छे. आस्ते आस्ते आस्ते. ब्रेक्षा चाहिए जबर है, ब्रेक्षा 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 ब्रेक्षा. पहिरीं इहो त मां त इहो तव्हांखे कंफर्म त कयां तव्हां सही था पढ़ो या न था पढ़ो. चे ते चओ, चे खां पढ़ो. शाबाश. आराम आराम सां हिकिड़ो हिकिड़ो अलॻि अलॻि जीअं सभु ॿुधनि ऐं सम्झी सघनि. चओ. चाहिए जबर चे, चे ये ज़बर चए. चओ जोर सां चओ. चाहिए जबर छे. पुट मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो. ओदा ब्रेक आहे तव्हांजी. स्टॉप जो बटन आहे. हिकिड़ो ॻाल्हि ॿुधो. पहिरीं हिकिड़ो हिकिड़ो अखर क्लियर कंदा हलो. तव्हां सही नथा पढ़ो. मां जेके करेक्शन थो कयां तव्हां मूंसां करेक्शन वारो ॿीहर चवंदा हलंदव. ठीकु आहे. चे वारो पढ़ो ऐं उते स्टॉप थियो. मां तव्हांखे ॿुधायां तव्हां कहिड़ी ग़लती था कयो. पढ़ो. चाहिए जबर चे, चए. पढ़ो. चए चए, चे ये ज़बर चए. पढ़ो. चाहिए जबर चे. शाबाश. हाणे ईअं ई पढ़ो छे खे. चाहिए जबर छे. छे. शाबाश. वरी चओ. हिनखे वरी चओ. चाहिए जबर छे. छे. छई न चओ. छे ये ज़बर छे. छे आहे न. छे ये ज़बर छे. चओ. छे ये जबर छे. शाबाश. अॻिते पढ़ो. खे ये जबर खे. खे न आहे. खे खां पहिरीं छा आहे? हे ये जबर है. हे ये ज़बर हाय. चओ. चओ. हे ये हाई न चओ जबर न. है. हाई छो था चओ तव्हां? हे आहे न. हे ये.
हे ये तो ॿिनि अखरनि खे अलॻि अलॻि हे प्रोनाउंस था कयो। हे ये ज़बर हाय ईअं पढ़ो था, सिंपल हुनखे पढ़ो था, शुद्ध न ॾियोसि। चओ हई ये ज़बर है, हाई न चओ, चओ हे ये ज़बर हाय। हे 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 ये ज़बर है, ठीकु आहे। खई ये ज़बर खे, खई छो था चओ, तव्हां खे छो नथा चओ? इहो अलिफ खे बे बे खे बे ते खे 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 ये ज़बर खे, खे ये ज़बर खे ये ज़बर खे। खे, खे न खे खे न आहे, खे खे। वरी पढ़ो, खाए, वरी पढ़ो। खई ये ज़बर खे, खई ये ज़बर खे, खई छो था चओ तव्हां? तव्हां छो था चओ खई? तव्हां खे चओ खे। खे ये ज़बर खे, खे ये आराम खे सां ॾिसो, ये तमुल सां ज़बर खे, ॿुधो 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 ॿुधो। ऐं तकड़ कंदो, तकड़ तव्हांखे ख़बर न कहिड़ो जी कमु आहे। सर, तव्हां चओ खे ये ज़बर खे, आराम सां खे तमुल सां पढ़ो। चओ खे ये ज़बर खे, खे खे। वरी चओ खे खे खै खे खे खै ये ज़बर खे, खै खै खे। वरी पढ़ो खै खै ये ज़बर खे, खे ये ज़बर खे। खे ये ज़बर खे, अॻिते पढ़ो, खे ये ज़बर खे, अॻिते पढ़ो। दाल ये ज़बर दे, दे ना आहे पुट, दए आहे, दए दए। पढ़ो दाल दे ये ज़बर दे, दे। तव्हां हुनखे सम्झो ई कोन था, तव्हां जेका मां ॻाल्हि थो चवां हुनखे तव्हां फॉलो ई नथा कयो। तव्हां चओ दाल ये ज़बर दए। चओ दाल ये ज़बर दे, दे ना आहे, दए आहे। दे ऐं दे दए में फ़र्क़ु आहे। दई दए छा दाल ये छा पढ़ंदो? ज़बर दे, वरी पढ़ो। दाल ये ज़बर दे, ॾिसो दे वारी असां चार्ट पढ़ी आयासीं, ए वारो चार्ट पढ़ी आयासीं असां, उन में हो दाल ये दे। हिन में दाल ये जे मथां ज़बर आहे त दए। दाल ये में दाल ये ज़बर में फ़र्क़ु आहे। दाल ये ज़बर दए आहे, दाल ये ज़बर धए आहे। पढ़ो दाल दाल ये ज़बर दे, दए। दाल ये ज़बर दए, नॉट दे। दे ऐं दए दे में फ़र्क़ु महसूस थिए थो या नथो थिए? जी सर, त ही ए जो चार्ट आहे न बाबू, ए जो चार्ट आहे। त हिन में दाल ये ज़बर दए थींदो, दे न थींदो। उहो ए जो चार्ट पढ़ी आयासीं, दाल ये दे। उहो हिन खां पहिरें वारो चार्ट हुजनि त पूरो हफ़्तो मथो आहियूंसीं। ही ॿियो चार्ट आहे। चओ दाल ये ज़बर दए, दाल ये ज़बर दे, दए दए, दए। दाल हाँ ये ज़बर दए, हाँ, ये छा आहे? दाल ये ज़बर धे, धाए धाए धे, धाए दाल ये ज़बर धे, धाए। धे वार चार्ट पढ़िया। थैंक यू वेरी मच। हु विल रीड इट? हु विल रीड इट? आसिफ इकबाल साहब, चे से पढ़िए, चे से पढ़िए। चे ये ज़बर चे, शाबाश छे ये ज़बर छे, शाबाश हे ये ज़बर है, शाबाश खे ये ज़बर खे, शाबाश दाल ये ज़बर दे, शाबाश। दाल ये ज़बर धे, जबरदस्त। थैंक यू सर, दाल थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। चे ये ज़बर चे, छे ये ज़बर छे। आई एम रिपीटिंग इट राइट। आसिफ इकबाल साहब ने बिल्कुल ठीक पढ़ा। चे ये ज़बर चे। देखें इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है, चे ये, उसको उस पर स्ट्रेस नहीं देना, चाहे नहीं कहना। चे तब कहना है जब उसको हम टोटल प्रोनाउंस करेंगे, यानी टोटलिटी बयान करेंगे। चाहिए ये हिज्जे के दौरान नहीं कहेंगे। चे ये ज़बर चे, छे ये ज़बर छे, हे ये ज़बर है, खे ये ज़बर खे, दाल ये ज़बर दाए, धाल ये ज़बर धाए। सिंपल इज दैट। इससे पहले हम पढ़ के आए थे क्या? चे ये चे, छे ये छे, हे ये हे, खे ये खे। इससे पहले वाले टेबल में। अब आगे उसके ऊपर ज़बर, फर्क है, बगैर ज़बर के वो सिंपल आएगा, सीधा आएगा, ठीक है। लेकिन जबर के साथ जो वो चाय छय हाय खाय दाय धाय इस प्रोनाउंसिएशन में, हु विल रीड यहां से ऑनवर्ड्स, धाय ऑनवर्ड्स, हु विल रीड? हु इज देयर टू रीड? हु इज देयर टू हेल्प मी रीडिंग इन दिस? आयशा खान साहबा। जी सर। जी ढे डे ये ज़बर डे, इसको आप डाल कहें, ड ड ड। आप अपनी जुबान को ड तालू से टच करें और रब करके और कहने की कोशिश करें। ड ड डाल, डाल ये ज़बर डे, बोले। डाल ये ज़बर डे, ठीक है, इसको इम्प्रूव करें। दाल ये ज़बर डे,
शाबाश जी। जी दाल के बाद क्या दाल, है? ढे, ढे ये जबर ढे, ढाई। ढे, दोबारा दा, पढ़े। ढे ये जबर ढे, गुड जाल ये जबर जय, गुड रे ये जबर रे, गुड रे ये जबर रे, शाबाश थैंक यू थैंक यू आई एम रिपीटिंग इट। डाल ये जबर डाई, डाल ये जबर डाई, ढाल ये जबर ढाई, जाल ये जबर जाई, रे ये जबर राई, डे ये जबर डाई। मोहम्मद जलील साहब, कैन यू हेल्प मी रीडिंग ऑनवर्ड्स, डाई ऑनवर्ड्स, बल्कि रे से आप पढ़े। मोहम्मद जलील साहब, कैन यू हेल्प मी? रबिया साहबा, कैन यू हेल्प मी? यस सर। जी रे ये जबर रे, शाबाश रे ये जबर रे, शाबाश जे ये जबर जय, शाबाश शीन ये जबर सय, शाबाश शीन ये जबर शय, शाबाश स्वाद ये जबर सय, शाबाश द्वाद ये जबर जोय। थैंक यू बेटा। ज़्वाद ये जबर ज़ाय। Who will read it onwards? शादी सराज साहबा। अस्सलाम सर। वैसलाम मैम, ताकि आयो। मां ठीक है सर, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अखबार में इश्तिहार पढ़ लिया? जी सर। आपने अखबार में इश्तिहार पढ़ लिया? अखबार में इश्तिहार, सॉरी सर जी मैं समझी नहीं एक आपकी एक बात। हमने जो है वो तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार छपाया था, मैंने कहा शायद वो पढ़ के आप आई। नहीं सर, सिग्नल का इशू है, 6 बजे लाइट आती है तो फिर मैं ज्वाइन करती हूँ। ओके चलें, ज़्वाद ये जबर ज़ाय, स्वाद से आप पढ़ें। स्वाद ये जबर साए, ज़्वाद ये जबर जाए, शाबाश तो ये जबर ताए, जबरदस्त नो ये जबर जाए, सही आइन ये जबर आए, सही वैन ये जबर गए, सही फे ये जबर फाए, शाबाश फे ये जबर फाए, शाबाश काफ ये जबर काए, थैंक यू काफ ये जबर काए। थैंक यू वेरी मच। शादी ओके सराज सर। साहिबा जो है वो उन्होंने पढ़ा काफी जबर कै से काफी जबर कै तक। मैं रिपीट करता चलूं, इससे पहले जो हरूफ आए वो भी डालिए जबर डाए, डालिए जबर डाई, ढालिए जबर ढाई, जालिए जबर जाई, रे ये जबर राई, रे ये जबर डाई, जे ये जबर जाई, सीन ये जबर साई, शीन ये जबर शाई शाई, स्वाद ये जबर स्वाई, ज़्वाद ये जबर ज़ाय, त्वे ये जबर त्वय, ज़ुए ये जबर ज़ाय, आइन ये जबर आय, गैन ये जबर गै, गैर। क्या क्या लफ्ज़ बनेगा? गैर। ठीक है, इससे पहले का भी हमने जिक्र, शैतान, शैतान नहीं होता, शैतान इस गलत, शैतान। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज बनते हैं। फिर ये जबर फै, फे ये जबर फै, फै ये जबर फै, काफ ये जबर कै, काफ ये जबर कै। Who will read from Tue? Who is going to read from Tue? मोहम्मद जली साहब, can you hear me now? Are you online with us? कनेक्टिविटी के इशू की वजह से कभी Yes, कभार sir. जी जी Yes, sir. I'm there, sir. Okay, sir. Can you Uh, read from sir, Tue onwards? Tue onwards. Yes, sir. जी। तो ये जबर ये पहले ये आएगा, तोए ये जबर, पहले हरूफ तोए उसके बाद हरकत। जी तो ये जबर ते, तोए तोए तोए, ते नहीं है तोए सर। हाँ जी हाँ, जी, तोए ये जबर ते, ते नहीं है सर, ते वाली जोए लुगत पढ़ के आए हैं, वो जदवल पढ़ के आए। ये है ताई, ये आए बाए बाए भाई ताई, इस तरह से आएगा। जी तोए ये जबर ते, ताई तय, जी, जोए ये जबर जे, जाए ऐन ये जबर ए नहीं आए आए, आए, ऐन ये जबर ए, गैन ये जबर गए, गए फे ये जबर फे, सही फे फे ये जबर फे ये जबर फे, फे ये जबर फाए, रीड इट अगेन। फे ये जबर फे, गुड, काफ ये जबर कै। काए, शाबाश, थैंक यू। माविश साहिबा,
जी सर। जी फे से पढ़े सर जी। फे ये जबर फे, गुड फे ये जबर फे, गुड काफ ये जबर के, गुड। के ये जबर के, के नहीं है, के तो इंग्लिश में होता है, ये भी काफी है। वो के काफ है, ये काफ ये वो जबर काफ है, ये के, काफ है। अगेन काफ ये जबर के, ओके खे ये जबर खे, गुड गाफ ये जबर गए, गुड गे ये जबर गए, गुड घे ये जबर घे, गुड गे ये जबर गए, गए नहीं है, ये गे आप पढ़ के आए, ये क्या है? नी नी घे नी ने नी ने ये जबर नए, नए नहीं है ना, वो तो नून से आएगा। ये नी है, नी फ्रॉम नोज, फ्रॉम दिस ने नेजल वॉइस। नी ने नी ने ये नी जबर ने, नहीं, मेरे साथ रिपीट करें पहले, पहले इसको निकालना सीखें। नी ने नी फ्रॉम नोज, यस। नी ये जबर नी गए, बोलिए। ने ये जबर नए, आप नून कह रही हैं, आप इमरान साहब की, इमरान जकरिया साहब की नकल कर रही हैं, वो भी नून कह के जान छुड़ाते ये हैं। सर थोड़ा दिस सा इज नी, दिस इज नी। जुबान कहीं टच नहीं होगी, लेकिन नून से नेजल वॉइस निकालेंगी। नी नी बोलिए। ये कह रही हैं आप, तो ये कह रही हैं, ये वाला जो है ये नी है, ये नी है। नी नेवर टच द टंग विथ एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स। आपकी जबान लहराएगी दरमियान में, तालुओं के दरमियान, आप यहां से आवाज निकालेंगी, नोज से। नी बोलिए। ने नी 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 यहां से आप आवाज यहां से निकालें ना, यहां से निकालें, नोज के ऊपर वाले हिस्से से। नी नी बोलिए। ने आप नून कह रही हैं। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हु विल रीड इट फॉरवर्ड? हमारा सेशन अभी रिन्यू होगा, तो उसके बाद आई विल रिक्वेस्ट। और हमें हेल्प करनी थी माविश एजाज साहब उसको पढ़ने में। नदीम सोहू साहब हाणे तव्हां अचो ऐं तव्हां पढ़ो, तो एक वठी ऑनवर्ड्स पढ़ो, शाबाश। अच्छा सर, तोए खाटी। जी अच्छा, तोए ये जबर तोए, गुड जोए ये जबर जोए, सही है, ऐन ये जबर अय, शाबाश गैन ये जबर गए, शाबाश, फे फे ये जबर फे, सही है। फे ये जबर फे, ना ही छा है, फे तो पढ़ी है, ही छा है, ॿिन्ही में फर्क तो क्यों? ही छा है, फे 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 फे। फे ये जबर फे, काफ ये जबर कै, ओके काफ ये जबर के ना कई या कई कई कै, काफ या जबर कै, खे ये जबर खे, गाफ ये जबर गए, घे ये जबर घे, घे खां पहिरीं छा आहे? गाफ खां पोइ छा आहे? घे खां पहिरीं छा आहे? गे ये जबर गए, सही, घे ये जबर घे, ओके ngए ये जबर ngए, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। तो ये जबर तय, ज़ोए ये जबर ज़ोए, ऐन ये जबर आए, गैन ये जबर गए, फे ये जबर फे, फे ये जबर फे, फे ये जबर फे, फे ये जबर फे, काफ ये जबर कै, काफ ये जबर कै, काफ ये जबर कै, काफ ये जबर कै, खे ये जबर खे, काफ ये जबर गए, गे ये जबर गए, घे ये जबर घे, ङे ये जबर ङे गए, ङे यहां से निकलती है आवाज, ऊपर वाले नोज के इस हिस्से से। ङे ये जबर नई, लाम ये जबर लय। हु विल रीड फ्रॉम लाम ऑनवर्ड्स? फाइजा साहबा। जी सर। जी मैम। मीम ये जबर है, लाम से, नून लाम ये से, लाम जबर, लाम लाम का। लाम ये जबर लय, मीम ये जबर नए, नून ये जबर नए, नून ये जबर नए, वाव ये जबर वय, हे ये जबर है, हमजा ये जबर अय, ये जबर य।
ये जबर ये. Who will read this? Who will repeat this from lam onwards? Who is going to repeat this from lam onwards? इमरान ज़करिया साहब जी. जी इमरान साहब, लाम से onwards. लाम ये जबर ले, लय मीम ये जबर लय ले का पढ़ के आए हम. वो लाम एक का ये चार्ट. जबर लाम ये जबर लय। सर उससे पहले वाला जो लफ्ज है वो मैं एक दफा पढ़ लूं ताकि प्लीज आप प्लीज 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 जरूर पढ़िए. मी इतना लंबा सोचेंगे आप पढ़ने से पहले? शायद आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई. चलें, आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप दोबारा हमारी हेल्प कर दें. आयशा खान इसको पढ़िए, लाम से ऑनवर्ड्स पढ़िए. जी सर। लाम ये जबर लय, ओके मीम ये जबर मय, गुड नून ये जबर नय, गुड. नून ये जबर न, नून ये जबर नून नहीं है, नून नहीं है, नून जो आखिर में ण कह रही है ना, उसी को पहले भी रखे हैं. नून 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 ये नहीं है, जबर नहीं, नून नहीं है, नून जो आखिर में नून कह रही है ना, वही ण पहले भी रखे नून की जगह पर. ये होगा नून 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 नून. नून ये जबर ने, नून ट्राई रून रून ये जबर णे अड़ाई अड़ाई णे, अड़ाई. वाव ये जबर वय, हे ये जबर है, हमजा ये जबर आए, ये जबर ये. ओके थैंक यू. शादी साहबा फ्रॉम लाम जी सर। ऑनवर्ड्स, आखिरी लाम से लेकर आखिरी तंदुरुस्त. लाम ये जबर लय, मीम ये जबर मय, नून ये जबर नय, नून ये जबर नय, वाव ये जबर वय, हे ये जबर है, हमजो ये जबर ए, या ये जबर ये. गुड. जी इमरान साहब आप मौजूद हैं, पढ़िएंगे ऐसे. सॉरी सर कनेक्टिविटी इशू था वो ड्रॉप हो इट्स ओके गो अहेड सर, गो अहेड प्लीज प्रोसीड. ये सर उसी लफ्ज पे मैं पढ़ रहा हूँ. जी जी पढ़िए, ने ये जबर ने, दोबारा पढ़िए. ने ये जबर ने, नहीं सर ये नहीं तो ये है, ये पढ़े, ये पढ़े. ने ये जबर ने, ये आप ये पढ़ रहे हैं, ये जो है वो ये है, ये है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ऊपर पहली दूसरी लाइन में आखिरी हर्फ जो है ये है, ये नहीं है, ये है, गाफ की फैमिली से है. ने बोलिए. ने ये आप ये पढ़ जबर ने. सर बेटा आप ये पढ़ रहे हैं, ये आप ये पढ़ रहे हैं, ये गाफ की फैमिली से है. गाफ और घे को मिलाइए तो ये बनेगा नेग ये जबर ने, नेग सॉरी नेग ये जबर नेग. नहीं बेटा आपको नहीं कहना. थैंक यू. लाम से ऑनवर्ड्स पढ़िए. लाम ये जबर ले, लाए मीम ले नहीं है, ले वाली हम पढ़ चुके. वो लाम ये ले था, ये लय है. इसमें दोनों फर्क है. टेबल्स में क्यों हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? अगर सेम होती तो पढ़ क्यों रहे हैं अलग अलग? ये लय है, लय. बोलिए. लाम ये जबर लाए, मीम ये जबर माए, नून ये जबर नाए, गुड रून ये जबर रे, गुड वाव ये जबर वाए, गुड हे ये जबर हाय, गुड. हमजा ये जबर ये, हमजा ये जबर ये आए, ये जबर हमजा ये जबर आए. हमजा ये जबर आए, हे ये जबर ये जबर ये. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. तो लेट मी रिपीट दिस आखिरी चंद हरूफ. दैट इज घे ये जबर घे, गे ये जबर गए, घे ये जबर घाए, ने ये जबर नए, लाम ये जबर लय,
मीम ये जबर मै, नून ये जबर नै, नून ये जबर नै, वाव ये जबर वै, हे ये जबर हाय, हमजा ये जबर आय, ये जबर याई। शुरू से अगर हम इसको प्लेन रीडिंग दें तो प्लेन रीडिंग में क्या होगा, देखें ए, और जो हमने पहले ए का चार्ट पढ़ा था वो था अलिफ ये बे ये बे, ये है अलिफ ये जबर आए, सारे दोनों में फर्क होगा ना, वो था ए बे, ये है आए बाए बाए भाई, तय थय टय ठय, सय पय जय जय, झय ñय चय छय, हय खय दाय धाय, डय डय ढय जय, रय डय, जय सय शय, स्वय जय, तय जय, आय गय, फय फय, फय फय, दोनों फर्क देखें, फय फय, कय कय, कय कय, कय अलग से निकली आवाज, निडी मत निकली आवाज, कय कय, खय गय गय खय, नय लय मय, नय अणय वय हय आय यह। Any questions? Any questions about this table? This was stage number what? कौन सा मरहला था इस टेबल का? माविश साहब केड़ो मरहलो हो इन टेबल जो? काओ मरहलो इन सर टेबल? 10th ना मरहलो इन टेबल पेरों जो पेरों पेरों सर पेरों मरहलो। जी शादी साहब जी सर फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। First step है, and let me correct this numbers. Somebody has written this number wrong, and that is sorry. Let me correct it first. और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. This is table number 10. और उसका पहला मरहला था जो कि हमने आज किया. और this is table number 10. Now I hope this will be this is correct. के table number 10. Now I'm sharing with you. So the correction should be made then and there, right? उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए. तो this is जो चार्ट and जो चार्ट का पहला मरहला हमने आपकी खिदमत में पेश किया, right? हम जो लास्ट सेगमेंट किया करते हैं उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चंद इसके लफ्ज़ सीखेंगे. पार्ट्स ऑफ बॉडी इन सिंधी, ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब पार्ट्स ऑफ बॉडी के जब हम जिक्र करते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो हमारी स्किन के अंदर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं. एक्सटीरियर का मतलब यह है कि जो विजिबल है हमारे जिस्म पर, और जो अंदर है जैसे दिल है, जैसे किडनीज हैं, जैसे ये अलग से उनका जो है वो फंक्शन है और अलग से उनकी बात होती है. लेकिन हम जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो कि विजिबल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं. और अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि अंदर वैसे तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों तो टिश्यूज हैं, वीन्स हैं, लेकिन अंदर जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जैसे दिल है या फेफड़े हैं या जिगर है या गुर्दा है, या उनका भी जिक्र कर लेंगे. 4-5 ऐसे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी. दिमाग है जो कि हेड करता है पूरे उसको, तो उनकी जो केसिंग बाहर बनी हुई है, जैसे दिमाग है तो ये सर जो है वो उसकी केसिंग है, ये उसका शील्ड है. तो इस तरह से मुख्तलिफ जो आज़ा हैं, उन आज़ा को बाहर वाले आज़ा जो हैं वो उनका कवर बनकर सपोर्ट करते हैं. और ये कुदरत का नेचर का निज़ाम है जिसको अज़ल से लेकर अबद तक कोई नहीं तब्दील कर सकता. तो एटलीस्ट वी शुड नो द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन सिंधी, कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी है. बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तो एक जैसे हैं, जिनमें से जैसे कि मैंने आपको बताया, कान में से अलिफ आप ओमिट कर दें तो कान को सिंधी में कन कहते हैं, नाक को सिंधी में नक कहते हैं. तो दरमियान से अलिफ ओमिट करेंगे तो वो आपको लफ्ज मिल जाएगा. दोनों जुबानों की मुमासलत से बहुत सारे फवायद भी होते हैं, तो आपको याद करने के लिए ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन कुछ जो है अल्फाज वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, यानी उनकी अल्फाज की शेप जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, लेकिन ऐसे कुछ हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे पार्ट्स का तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स का पहली मरतबा पता चलेगा. तो चंद अल्फाज इसमें कर लेते हैं. रिश्तों की तरह इसको भी हमें किस्तों में करना पड़ेगा, क्योंकि ना करते भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं कि जो जानना ज़रूरी है. और मैंने कोशिश की है कि सिंगुलर और प्लूरल में आपको बताऊं, ख़ासतौर पर जो आज़ा प्लूरल में है. जैसे दिमाग तो एक ही है, लेकिन आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, मुंह एक है, नाक एक है, हाथ 2 हैं, बाजू 2 हैं. अब हाथ 2 हैं तो बाजू भी 2 हैं, कोहनियाँ भी 2 हैं. अगर टांगें 2 हैं तो पाँव भी 2 हैं, उंगलियां तो
10-10 हैं, 10 हाथ की और 10 पैरों की, ओवरऑल 20 उंगलियां हैं, घुटने 2 हैं। तो जिन जिन के भी प्लूरल्स मौजूद हैं तो मैं उनके प्लूरल्स भी आपको जरूर बताता चलूंगा। तो स्टार्टिंग विद आंख, क्योंकि आंख से ही आपका हर एक्सप्रेशन जाहिर होता है। बहुत सारे लोग जो फेस रीड करते हैं वो आंख से पता चला लेते हैं, पता चल जाता है उनको कि ये शख्स जो है वो बात सही कर रहा है या गलत बयानी कर रहा है, राइट। तो एवरी एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेस्ड थ्रू आई। वैसे तो दिमाग सबसे ज्यादा अहम तरीन ऑर्गन है, यानी सर, उसकी केसिंग सर है, लेकिन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आंख, राइट। लर्निंग में भी आंख का बड़ा रोल है। सबसे पहले आप लफ्ज की शक्ल देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं उसको दिमाग में, और ये आपकी जो रीडिंग स्किल है उसको सपोर्ट करती है। रीड करते हैं आप आंखों से, और जब रीड कर सकते हैं तो आप राइट कर सकते हैं। जब आप राइट कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको आंख की जरूरत पड़ती है। तो आंख इज आई, और सिंपल इसको अख कहा जाता है। अख, अख, ये याद रखिएगा कि हर लफ्ज सिंधी में अपने आखिरी हर्फ पर कोई ना कोई हरकत कैरी करता है, बगैर हरकत के नहीं होगा। उसका हर लफ्ज आखिरी हर्फ पर हरकत जरूर लाएगा, अनलेस वो वॉवल पर खत्म होता है। और आपको याद होगा कि सिंधी जुबान के वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो अब अलिफ पर जबर, खे पर जेर, अलिफ जबर अ, खे जेर खे, अखे इज आंख, आई। अगर दोनों आंखों का जिक्र करें तो कहेंगे अख्यूं, क्योंकि अख इज अ फेमिनाइन, ठीक है। अप्लाई होगा वही रूल कि जो पहले हमने नारंगी नारंगियों हमने जिक्र किया था, सिर्फ ड्रेल ड्रेलूं, रेल रेलूं, याद है आपको मश्क में। तो अख, अख इज आंख, तो उसकी जमा हो जाएगी अख्यूं, अख्यूं। अलिफ ज़बर अ, खे ज़ेर खे, ये वाव नून गुन्ना पेश यूं, ये यूं इसका जो है वो दूसरा हिस्सा है। अख इसका जो है वो पहला हिस्सा है। अख्यूं मीन्स आंखें, आईज, जमा की सूरत, मेल की हो या फीमेल की हो डजंट मैटर, क्योंकि आंख को आंख ही कहा जाता है, चाहे मेल की हो या फीमेल। अब ज़बर अ, अलिफ ज़बर अ, खे ज़ेर खे, ये वाव नून गुन्ना पेश यूं, अख्यूं इस जमा, आंखें, आईज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कान, कान, अलिफ निकाल दें, उर्दू में से अलिफ निकाल दें तो लफ्ज बन जाएगा सिंधी में कन्न। लेकिन वही सिंधी का रूल, आखिरी हर्फ पर कोई ना कोई हरकत होती है, क्योंकि ये मेल है। कान अपने जौहर में मेल है, चाहे फीमेल का ही क्यों ना हो। लेकिन मेरा कान बंद हो गया, आप ये नहीं कहेंगे मेरी कान बंद हो गई है, मेरा कान बंद हो गया है, यानी अपने जौहर में कान जो है वो मैस्कुलाइन है। आंख जो है फेमिनाइन है, मेरी आंख बह रही है, मेरी आंख नम है, मेरी आंख में दर्द है। तो देखें आज़ा भी अपने जौहर में मुजक्कर या मुअन्नस है, ठीक है। तो कान जो है वो अपने जौहर में मुजक्कर है। मेरा कान बंद हो गया है, मेरा कान बह रहा है, मेरा कान, अपने कान खुले रखो, तो अपने जौहर में मुजक्कर है। तो इसलिए सिंधी में नून पर पेश आएगा कन्नु, कन्न, काफ ज़बर कर, नून पेश न। छोटा सा वर्ड है, याद करने में इंतहाई इजी है। कान यानी वाहिद। जमा करेंगे तो ऐसे अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कि मैस्कुलाइन है और आखिरी हर्फ पर पेश लाते हैं, उनको जमा करना आसान होता है। सिर्फ उस पेश को हटाकर जबर लगा देंगे तो वो जमा हो जाएगी। कन्न इज जमा, काफ ज़बर क, नून ज़बर न, कन्न इज जमा, कान जमा में। दो कान हो या फिर ओवरऑल आप कह रहे हैं कि भाई आप सबके, आप मुखातिब है ना 10 लोगों से, क्लासरूम में मुखातिब है, 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, भाई सब अपने कान खोल कर सुन लो। 50 बैठे तो अब 100 कानों का जिक्र कर, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, बितुन जा भी कन्न थी ना। कन्न मीन्स 2 या 2 से ज्यादा कान। एक इंसान का जिक्र करेंगे तो जाहिर है कि 2 कानों का ही जिक्र करेंगे। कन्न, कन्न इज कान इन जमा, प्लूरल में कान जमा, ईयर्स कन्न, कान जमा। अंडरस्टैंड? कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। Right, we are reading parts of body, part 1, parts of human body, part 1. 2 आज़ा हमने सीखे, अख और कन्न। अख की जमा अख्यूं, कन्न की जमा कन्न। नाक पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, अलिफ निकाल दें तो सिंधी में लफ्ज बन जाएगा।
आपको पता है कि काफ सिंधी में दूसरे तरीके से लिखा जाता है, जिस तरह से ये उर्दू में नाक काफ लिखा जाता है, सिंधी में वैसे खे लिखा जाता है। तो दिस इज नाक अलिफ निकाल में, और नाक अपनी जौहर में मुजक्कर है, नक्कु मुझो नकुत हुए है, उर्दू में मुअन्नस है। ये फर्क आ गया। मेरी नाक बह रही है, ठीक है, मेरी नाक लाल हो गई, सिंधी में उसका जौहर मुजक्कर है, सिंधी में नाक मुजक्कर है। कुछ ऐसे हैं कि जो मुजक्कर मुअन्नस, जैसे आंख और कान का मैंने मिसाल दी, की मैंने मिसाल दी, तो इसी तरह से मिसाल भी उर्दू में मुअन्नस है, सिंधी में मुजक्कर है। बाजार सिंधी में मुअन्नस है, उर्दू में मुजक्कर है। अखबार सिंधी में मुअन्नस है, उर्दू में मुजक्कर है। दिल सिंधी में मुअन्नस है, उर्दू में मुजक्कर है। मुझी दिल धड़के थी, मेरा दिल धड़क रहा है। बहुत सारे अल्फाज जो अपने जौहर में चेंज है। तो उर्दू में नाक मुअन्नस है, सिंधी में नाक मुजक्कर है, इसलिए काफ पर पेश आएगा नक्कु, नून पर जबर, काफ पर पेश, नून जबर न, काफ पेश कु, नक्कु, नक्कु इज नाक। सिंधी में नक इज मुजक्कर, मुझो नक गाढ़ो थी वियो आहे, मुझे नक में सूर आहे, मुझो नक वहे थो, तो मुझो नक ही कटराए छॾियो, नक मुझो नक। उर्दू में मेरी नाक, तो नाक जो है उर्दू में मुअन्नस, सिंधी में मुजक्कर, तो नक को। और जाहिर है कि वही रूल मैंने आपको बताया कि सिंधी में अगर मुजक्कर और आखिरी हर्फ पर पेश आ रहा है तो उसकी जमा प्लूरल बनाने का तरीका आसान है, पेश हटा दें, जबर लगा दें, तो ये बन जाएगा नक्क। अगर मैंने इसलिए इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए नहीं इसका जिक्र किया कि ह्यूमन बॉडी में नाक सिर्फ एक ही होती है, लेकिन प्लूरल बनाएंगे तो उसका नक्का हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के बारे में अगर बात करेंगे। वात मुंह, अब ये अपने मेक में जैसे नाक और कान सेम थे, बनावट में इसका लफ्ज थोड़ा चेंज है। माउथ का लफ्ज है सिंधी में वात, वात। जो मुंह है, मुंह से मिलता जुलता लफ्ज सिंधी में है मुंह, वो कहते हैं फेस को, चेहरे को, फेस को। मुंह सुबह जो थधे पानी सां मुंह धो तो, मुंह जो मुंह गाढ़ो थी वियो आहे, ठीक है। मुंह जो है, मुंह जैसा लफ्ज अगर निकालेंगे तो वो मुंह होगा, यानी चेहरे के लिए, रूह के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मुंह यानी माउथ की बात जब आप करते हैं तो उसको सिंधी में कहते हैं वात, वात। वाव वाले जबर वा, ते पेश्त, वाव वाले जबर वा, ते पेश्त, वात इज माउथ, मुंह। वात, वाव वाले जबर वा, ते पेश्त, वात। आई डोंट नो उस पर तस्वीर क्यों नहीं लगाएगी, लेकिन आप, आई होप कि जब आप तक स्लाइड्स आएंगी तो उस पर तस्वीर जरूर होगी। वात इज मुंह यानी माउथ, ठीक है। वो भी सिंगुलर ही होता है, और अपने जौहर में वो मुजक्कर है, लेकिन बहुत सारे मुंहों का अगर जिक्र करेंगे तो ते की जगह पर, पेश की जगह पर जबर आ जाएगी, वात। वात मीन्स मुंह। उन्होंने चो तो पंहिंजा वात बंद रखन, उनसे कहो कि अपने मुंह यानी प्लूरल में बंद रखें, तो उसको सॉरी वात हो जाएगा, वात हो जाएगा। तो वात इज मुंह यानी माउथ। उसके बाद है उसी मुंह का हिस्सा होंठ, चप्पा, ठीक है। होंठ का तो वैसे भी जिक्र नहीं होता, लेकिन अगर एक होंठ का जिक्र हो वाहिद में, मुंह जो चप्प सुजी वियो आहे, तो होंठ जो है अपने जौहर में मुजक्कर है, तो सिंगुलर चप्प होगा। चप्प जो मैंने आपको रूल बताया कि आखिरी हर्फ पर पेश आएगी, तो चप्प इज होंठ, एक सिंगुलर होंठ। लेकिन वैसे उमूमी तौर पर जिक्र होता है दोनों होंठों का, तो दोनों होंठों के लिए चप्प, ये उसका प्लूरल है, यानी दोनों होंठ। चप्प, होंठ मीन्स लिप्स, लिप्स, होंठ इज कॉल्ड चप्प इन सिंधी। चप्प, चे जबर च, पे जबर प, चप्प। शायरी में जिस तरह से होंठों के लिए लब भी इस्तेमाल होता है, मैं अपने लब नहीं खोलूंगा, मैं अपने लब नहीं वाह करूंगा, तो लब सिले हुए हैं, क्या कहूं कि शर्म से हैं लब सिले हुए। तो लब का पता है आपको उसकी मायने क्या है? आपको पता है लब लफ्ज के मायने क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है वो होंठ के लिए? एनीबॉडी, कोई आइडिया? लब मेहरान किसी ने सुना है? लब सिंधु, लब रावी। लब कहते हैं किनारे को, लब कहते हैं किनारे को बुनियादी तौर पर। लबालब सुना है आपने? गिलास लबालब, जाम लबालब भरा हुआ है, यानी उसका जो कोई भी जो आपका पॉट होता है उसके ये किनारे होते हैं, ठीक है। ये कप है ना, ये इसके किनारे हैं, ये इसका लब है। ये अगर फुल
ही जगह टुबटार भरे लो तो उसको कहते हैं लबालब भरा हुआ है, यानी लब तक, अपने किनारों तक भरा हुआ है, उसको कहते हैं लबालब भरा हुआ है, यानी किनारों तक। और होंठ को लब क्यों कहा जाता है? कि वो मुंह के किनारे हैं, मुंह को बाउंड्री लाइन करते हैं, मुंह को महदूद करते हैं। तो ये दोनों किनारे हैं मुंह के। ये अगर किनारे ना हो तो हमारे दांत बड़े बदनुमा नजर आए। तो दांत जहां पर जरूरत होती है उसको दिखाने के लिए, या मुंह में जुबान भी होती है, तो इन चीजों को बवक्त जरूरत उनकी नुमाइश के लिए ये उसको कवर करते हैं। तो दीज आर दी किनारे ऑफ आर मुंह। लब उस सूरत में इस्तेमाल होता है। लबे मेहरान सखर में मशहूर इलाका है। लबे मेहरान यानी मेहरान का किनारा। मेहरान कहते हैं दरिया सिंध को, दरिया सिंध का किनारा, ठीक है। लबे सागर यानी सागर कहते हैं समंदर को, समंदर का किनारा, लबे सागर। तो लब, लब कहते हैं किनारे को। ये मैं बरसबीर जिक्र आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि अगर किनारे के मायनों में लब को इस्तेमाल करेंगे तो सिंधी में भी लब इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पर शायरी में या लिटरेरी लैंग्वेज में उसको लब इस्तेमाल करते हैं। वैसे उमूमी हम जिक्र कर रहे हैं, उमूमी गुफ्तगू में उसको कहते हैं चप्पल। जलील साहब, ये क्वेश्चन। सर मेरे जहन में आ रहा था लुआब दहन, जी, तो वो लुआब को कहते लुआब हैं, इस लुआब वो से कहते हैं, जुड़ता है सर कोई? नहीं लुआब कहते हैं, थूक को? थूक को कहते हैं, जी हाँ। जी यानी सर, वो मुंह इससे की, कोई जोड़ बनता है लब से? नहीं सर, उसका उसका लब से कोई ताल्लुक नहीं। लुआब जो है वो अरबी का लफ्ज है, वो, और लब जो है वो फारसी का लफ्ज है। ये दोनों में कोई उसका नहीं है, ताल्लुक नहीं है। लुआब कहते हैं मुंह की नमी को, मुंह की नमी को, जो कि बहुत जरूरी होती है मेडिकली। और वो हमारी बहुत सारी चीजों को जो है, वो बहुत सारे जरासीम को, वो जो कारामद जरासीम है उनको यूटिलाइज कर रही होती है, और बेकार जरासीम को पैदा होने से रोकती है। और बहुत सारे तो नहीं, लेकिन रेयर केसेस में कभी कभार ऐसा होता है कि वो लुआब नहीं बन रहा होता, तो एक बहुत बड़ी बीमारी है ये। तो कुदरत की वो चीजें हैं कि जो मिलियंस से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन कुदरत ने हमें दी हुई है। तो लुआब जो है वो मुंह की नमी को कहा जाता है, थुक के चेवेंदा है। उसका लब से कोई ताल्लुक नहीं। लब फारसी का लफ्ज है। तारीख लुबे, लुबे तारीख सिंध, सिंध की तारीख की बड़ी मशहूर किताब है। लुब अलग चीज है, लब अलग चीज, भारत। तो लब यानी लिटरली उसमें जुबान में इस्तेमाल होता है, आम जुबान में उसको चप्पा कहते हैं। चप्पा, चे जबर च, पे जबर प, चप्पा। अगर एक होंठ का जिक्र करेंगे तो चप्पो हो जाएगा, चे जबर च, पे पेश पो, चप्पो मीन्स एक होंठ, राइट। तो दिस इज लिप्स, होंठ, चप्पा। आगे बढ़ते हैं जी। अब मुंह के अंदर, दहन के अंदर, दहन जो आपने कहा ना, लुआब दहन, दहन मुंह को कहते हैं। गुंचा दहन आपने देखा होगा, गुंचा हमने पढ़ा है, किसको कहते हैं? गुंचा कहते हैं कली को। गुंचा दहन यानी इतना छोटा मुंह है कि कली जितना है। ये शायर जो है वो सर पे चढ़ाते हैं ना अपने महबूब को, ऐसी ऐसी तशबीहें देते हैं जो हकीकत में पॉसिबल ना हो। तो यानी इतना छोटा मुंह है कि वो दहन, आपके जो है गुंचा दहन, यानी वो गुंचे जितना है, वो कली जितना है। छोटे गुलाब की अभी कली है, गुलाब भी पूरा नहीं हुआ, तो वो उसके जैसा है मुंह, इतना छोटा मुंह। तो गुंचा दहन जो है वो उसको कहा जाता है जी। तो दांत, दांत अगर वाहिद का जिक्र करेंगे, एक दांत का जिक्र करेंगे तो कहेंगे दंद, दंद, दंद। ये कहीं ना कहीं पर अरबी के दंदान से जो है वो इसका ताल्लुक है, ठीक है। या अरबी ने मुस्तार दिया हमसे, या हमने मुस्तार दिया उनसे। दंद, ये यहाँ पर नून गुन्ना है। दाल नून गुन्ना, जबर डन, दाल पेश दु, दंद। दाल नून गुन्ना, जबर डन, दाल पेश दु। दंद इज अ टूथ। आपको पता है टूथ जो है वो वाहिद होता है। जमा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टूथ इज वाहिद। जमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उल्टे आदमी, एनीबॉडी? जमा को अंग्रेजी में क्या कहता है? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, एनीबॉडी। टूथ की का प्लूरल क्या है? फजीला, फजीला साहब। सर दंद टूथ इंग्लिश में तो चवा, टूथ जो प्लूरल बुधायो, इंग्लिश में तो पूछा टीथ। थैंक यू। दंद, दंद इज टूथ, ठीक है, दंद। और आपको मैंने बताया कि ये अपने जौहर में, ये नहीं बताया कि अपने जौहर में ये मुज़क्कर है, लेकिन दाल पर पेश से आप समझ गए होंगे कि ये मुज़क्कर है। और ऐसे मुज़क्कर को जब जमा, सॉरी, मुज़क्कर के वाहिद को जब जमा करना हो
तो हम क्या करते हैं? अभी मैंने रूल बताया आपको, नक में और कन में रूल बताया कि आखिरी हर्फ पर अगर पेश हो तो वो मुज़क्कर है अपने जौहर में, यानी दांत जो है मुंजोलंद, ठीक है। अब उसको जमा करना हो तो हम क्या करेंगे जलील साहब? जमा करना हो अगर हम ज्यादा दांतों का जिक्र करें, सर आखिर में पेश लगा देंगे। पेश तो लगा हुआ है, वाहिद में पेश तो लगा हुआ है। शादिया साहब, सर लास्ट में जबर लगा देंगे। जबर लगा दें, क्या हो जाएगा? दंद। दंद, दिस इज ऑन योर स्क्रीन, दंद, दंद। दंद, दिस इज जमा, दांत, ठीक है। वही रूल है, थैंक यू शादिया साहब, ये वही रूल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और वो रूल ये है कि अगर वो लफ्ज अपने जौहर में मुज़क्कर होगा तो वो कैरी करेगा पेश अपने आखिरी हर्फ पर, दंद इज सिंगुलर मैस्कुलाइन, ठीक है। अब उसको प्लूरल करना आसान है, पेश की जगह पर जबर लग जाएगी, दंद, दंद बन जाएगा। जनरल फॉर्मूला मोस्टली, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस के, मोस्टली यही है कि आखिरी हर्फ पर अगर पेश है तो आप ये समझ जाएं, अगर इफ इट इज टॉकिंग अबाउट नाउन, ये ध्यान रखिए, इफ इट इज टॉकिंग अबाउट नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, आखिरी हर्फ पर अगर पेश है तो मीन्स मोस्टली केसेस में, सिवाय एक आध इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केसेस के, मोस्टली केसेस 99.9% केसेस में दैट इज अ सिंगुलर मैस्कुलाइन। उसको प्लूरल करने के लिए आपने पेश की जगह पर जबर लगा देनी है और वो हो जाएगा दंद इज जमा, दांत जमा, दंद, दाल नून होना जबर डन, दाल जबर द, दंद इज अ जमा, दांत जमा में टीथ, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सर, हेड, ये बच्चा इशारा कर रहा है अपने सर की तरफ, उसके अंदर है दिमाग जो कि हमारा हेडक्वार्टर है हर चीज का। और आपको पता है कि इंसान की मौत कब वाक़ होती है? जब वहां तक खून की रसाई बंद हो जाती है। तो एक मुसलसल एक सर्कुलेटरी निज़ाम है, ठीक है। ये दिल पंप करता है पूरे जिस्म से आने वाले खून को, और वो उसकी गंदगी साफ करके फिर मतलब दो खानों से वो खून दाखिल होता है, दो खानों से उसको पंप करके सबसे पहले दिमाग की तरफ भेजता है, और दिमाग से वो होता हुआ फिर वो पूरे जिस्म की गर्दिश करके दिल की तरफ जाता है, और दिल जो है फिर उसको साफ करता है, साफ करके और फिर वो दिमाग की तरफ भेजता है। द मोमेंट द ब्लड डजंट रीच द माइंड, क्या हो जाता है? इंसान की मौत वाक़ होती है। तो सर जो है हेडक्वार्टर है, हर चीज यहाँ से आपकी मॉनिटर होती है, हर चीज का हुक्म यहाँ से आता है। आप लोगों को पहचानते हैं कहाँ पर कौन सा जवाब देना चाहिए, सेंस कहाँ से क्रिएट होता है, एवरीथिंग क्रिएट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। और जब आप नींद की सूरत में होते हैं तो ये इसके अंदर, सर के अंदर जो है, अंदर वाला हेडक्वार्टर जो है, वो मेन सिस्टम, ये ऑफ कभी नहीं होता। ऑफ तब होता है जब इंसान की मौत वाक़ होती है, उस वक्त ये होता है कि ये स्लीप मोड पे चला जाता है। जिस तरह से आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर होता है स्लीप मोड पे, यानी आपका शऊर उस वक्त सो रहा होता है, तब शऊर और लाशूर जाग रहा होता है, राइट। तो उसकी केसिंग क्या है? आपके फोन की भी केसिंग होती है, उसकी केसिंग है सर, और उसको चोट से बचाना होता है, इसलिए कहते हैं हेलमेट पहनिए जब आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, इसको बचाना चोट से, क्योंकि हेड इंजरी में बचत कम होती है। तो उसको कहते हैं, सर को कहा जाता है मत्थो। कल हमने सरायकी का जिक्र किया था, ज़ाहिर याद है? सरायकी यानी सर के इलाके वाली जुबान, और सर का इलाका सिंध का कौन सा था? यही मुल्तान और उच्च शरीफ से लेकर और मौजूदा डहरकी तक, मौजूदा जैकोबाद तक, ये सर का इलाका था। क्योंकि जब नक्शा आप सिंध का देखेंगे तो उसमें सर का इलाका, ये भावलपुर और ये, तो वहां की जुबान सरायकी कहलाई, कि जो सिंध के सर की नक्शे में सर का जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर जो बोली जा रही है उसका नाम सरायकी है। तो सर को कहा जाता है मथो, मथो, मीम जबर म, थे वा जबर थो, मथो, मीम जबर म, थे वा जबर थो, मथो, मथो इज सर, इज हेड, मथो सर, राइट। उसके बाद आते हैं गर्दन। गर्दन, गर्दन है कंध, हालांकि कंध जो है उससे मिलता जुलता लफ्ज उर्दू में है कंधा, लेकिन कंधा हम कहते हैं शोल्डर को, ठीक है। तो ये फर्क है थोड़ा सा कुछ अल्फाज। बज़ाहिर आपको ये लगेगा यार कंध तो कंधे का या कांधे का ट्रांसलेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, गर्दन को कंध कहा जाता है, ठीक है। कंध, कंध, काफ जबर काफ नून गुना, ये नून गुना है, काफ नून गुना जबर कन, दाल पेश दो,
काफ नून गुन्ना ज़बर कन दाल पेश दो कंध इज गर्दन नेक कंध इज नेक राइट। आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये जो बैक वाली गर्दन है, गर्दन का बैक वाला हिस्सा, इसको क्याड़ी बोला जाता है, जहां पर बाल खत्म होते हैं और उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको क्याड़ी बोला जाता है। ये आगे वाले उसमें है लेकिन उससे मुल्हका है, इसलिए मैंने एडवांस में आपको बता दिया। कंध, कंध इज गर्दन राइट। उसके बाद है, ये बच्ची खुद बता रही है, कुल्हो, जो मैंने आपको बताया कंधे से मिलता जुलता है। कुल्हो, कंधा, कंधे को कहते हैं कुल्हो, कंधे को बोलते हैं कुल्हो, प्लूर सिंगुलर को बोलते हैं कुल्हो, ठीक है। काफ पेश को काफ लाम पेश काफ पेश को लाम जेर ले हे बाजवर हो कुल हो इस कंधा, कंधा इज वाहिद शोल्डर। अगर एक शोल्डर का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो होगा कंधा वाहिद, दैट्स अ शोल्डर। शोल्डर सिंगुलर इज कॉल्ड कुल्हो इन सिंधी। शोल्डर सिंगुलर इज कॉल्ड कुल्हो इन सिंधी। यहाँ पर वो पेश वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये वॉवल पर इख्तिताम पजीर हो रहा है, और वॉवल पर इख्तिताम पजीर होने वाले आखिरी हर्फ पर कोई भी हरकत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर रूल चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ रूल, लेकिन रूल वही है। लेकिन चूंकि लफ्ज ऐसा है, लफ्ज की बनावट ऐसी है कि ये वॉवल पर खत्म होगा, और वॉवल पर खत्म होगा तो जाहिर है कि आखिरी हर्फ पर कोई हरकत नहीं आएगी। आखिरी लफ्ज कनेक्टेड होगा पीछे वाले हर्फ से, आखिरी हर्फ कनेक्टेड होगा पीछे वाले हर्फ से, तो इस पर वो पेश वाला जिसको हम ज़बर दे रहे थे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वॉवल पर इख्तिताम पजीर होता है। कुल हो काफ लाम हे वाव, कुल हो इस कंधा वाहिद शोल्डर सिंगुलर एंड सिंधी। उसको अगर हम जमा में करेंगे तो वाव की जगह पर अलिफ लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे वाव को अलिफ से। कुल्हा, काफ पेश को लाम जेर ले हे अलिफ जबर हा कंधे जमा शोल्डर्स। काफ पेश को लाम जेर ले हे अलिफ जबर हा कुल्हा इज जमा शोल्डर्स। दोनों कंधे उसको जो है कुल्हा कहा जाता है। तो आज हमने कौन कौन से अल्फाज पढ़े? लेट मी रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स जो आज हमने पढ़े और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वी स्टार्टेड फ्रॉम अख, अख इज आंख वाहिद, अख्यूं इज आंखें, आईज जमा में राइट। उसके बाद है कन, कान, ईयर इन सिंगुलर। उसके बाद है कन्न इज जमा, कान इन जमा, ईयर्स इन प्लूरल। उसके बाद है नक्को, नक्को इज नाक, नोज इन सिंगुलर, और जमा में इसको नक्का बोला जाएगा अगर कहीं जरूरत हो तो, वैसे इंसानी जिस्म में नाक सिर्फ एक ही है। उसके बाद है वात इज दहन, मुंह, वात, वात इज माउथ। उसके बाद है चप्पा यानी होंठ, अगर एक होंठ कहने की जरूरत पड़े तो वो चप्पो होगा यानी एक लब। होंठ यानी लब, लिप्स, चप्पा। उसके बाद है दंद यानी दांत, वाहिद में दंद, और टीथ अगर जमा में हो दांत तो वो होगा दंद जमा में। मत्थो इज सर, सर इज मथो, हेड इज कॉल्ड मथो इन सिंधी, मत्थो। और गर्दन, गर्दन इज कॉल्ड कंध इन सिंधी, कंध। कुल्हो इज कंधा, वाहिद शोल्डर, एक शोल्डर उसको कहा जाता है कंधा। कुल्हो सिंधी में कहा जाता है कुल्हो। और अगर दो कंधे हों या बहुत सारे कंधों का जिक्र हो तो कहा जाएगा, ये कहते हैं ना कि भाई बहुत सारे कंधे हैं जो कौम का बोझ उठाने के लिए मौजूद हैं, तो जाहिर है कि आप सैकड़ों हजारों कंधों का जिक्र करते हैं। कुल्हा, कुल्हा इज जमा, कंधे इज जमा ऑफ कंधे, shoulders is called kulha in Sindhi. Any questions? Any questions regarding the last segment or regarding the first portion of that IA chart or anything else? So happy learning. Thank you very much कि आपकी तवज्जो रही आज के इस सेशन में भी. This was session number 38 of Sindhi language learning course. Thank you very much for your participation, and we missed all those who could not participate due to any reason, could not participate in yesterday's session. That was a very productive session. और अगर जो लोग नहीं आए थे वो भी अपनी माँ बोली के बारे में कुछ बयान करते या शेयर करते तो बहुत अच्छा लगता है हमें. मेरे 2 आर्टिकल्स हैं, कल मुझे वक्त नहीं मिल सका कि मैं अपनी टीम के साथ शेयर कर सकूं, तो आई विल शेयर दोज आर्टिकल्स. दोज आर पब्लिश्ड इन various websites, so I'll share it with you, and that will show you some not new information, लेकिन हो सकता है आपकी नजर से ना गुजरे, regarding overall the importance of mother tongue. और कुछ इसमें सिंधी का भी जिक्र है जो कि लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो उनको गो थ्रू कीजिएगा. हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके लिए नए हो. कोई सवाल उस सवाल से हो तो जरूर आप कर लीजिएगा.
तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी कुछ मजीद भी करें, और ये भी कोशिश करेंगे कि दूसरा मरहला जो ए वाले चार्ट का है वो भी आपकी खिदमत में पेश करें। कुछ वक्त मिला हमें, अगर बचा तो उसमें हम कुछ साबिकों और लाहकों की बात भी करेंगे। और by the next week we will be starting parts of speech. We will be starting grammar from parts of speech, right? So you can extend your feedback or any questions anytime to the admin of the WhatsApp group. So hope to see you tomorrow and hope to learn new things from you. और एक दूसरे के साथ डिस्कशन में नई चीज़ें इंशाल्लाह हम जरूर सीखेंगे। तो दिस इज मी यासिर काजी साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्लास नंबर 38 ऑफ सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स ऑनलाइन बैच 1। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बशर्ते याद और दुरुस्त की हालत, सी यू टुमारो एट 5 PM एंड क्लास नंबर 39। दिलुगत जुदाई का रहना है सदाई कर जना पे इतना खैर अल्लाह ने कहना।